जब भी वो बाजीराव मस्तानी दिलवाले आया था तो रोहित शेट्टी खुद भी क्लेम किया था कि एक वो आदमी मुगलाई डिश बना रहा है, मैं यहाँ पे पाव भाजी का बाखड़ा खुल के बैठा है, तुम लोग आओ, तुम लोग को अच्छा लगेगा और तुम लोग जाओ। इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो मैं भी उसके मूवी से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। रोहित शेट्टी हर किसी को पुलिस बना रहा है, राइट? यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप। संजय लीला सबको रंडी बना रहा है। Hello everyone, I'm Dr. Prasad and this is Praveen. As you can see by our names, we don't have any special credentials. If Singham 3 and Bhool Bhulaiya 3 are cinema, we are cinema lovers. That's pretty much it. Let's jump into the discussion. Trailer निकला है, पहले impressions. Have you seen the trailer? I've seen the trailer. I have Okay. lived through it. I have to ask if to answer the question, how many times have you seen the trailer? The answer is yes. I've seen it so many times. मैंने ऑफिशियल ट्रेलर कम से कम 30 से 35 बार देखा रहेगा, और अगर रिएक्शन वीडियोस अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो इट हैज इजीली क्रॉस्ड अ सेंचुरी. आई हैव सीन इट सो मेनी टाइम्स. मैंने 10 बार देखा है. I am a fan of this kind of cinema. I know this is crap, but it is that exact crap that I want on a Diwali during a time when I'm like, okay, I need mindless action. Okay, मेरे को अगर अपनी फैमिली को किसी मूवी के लिए लेके जाना है तो this is the kind of the movie I would go for, either Singham 3 और Bhool Bhulaiya 3. But yeah, that's it. That's mostly it. यार, I'll confess that I'm not naturally what do you say, inclined towards Rohit Shetty's cinema, but very recently, after you broke down how Simba had Oh, a crap, lot of dude, creative crap. liberties, you have Uh-huh. converted me. Okay. I know there are a few switches that I have to turn off when watching his movies, and Obviously. it's just that earlier I was looking at wrong places. Now, Uh-huh. when you have oriented my sight towards what to look for, I'm able Okay. to appreciate that cinema. नहीं, So, रोहित शेट्टी खुद भी क्लेम कर रहा है कि मैं जो है, लाइक जब भी वो बाजीराव मस्तानी दिलवाले आया था तो रोहित शेट्टी खुद भी क्लेम किया था कि एक वो आदमी मुगलाई डिश बना रहा है, संजय लीला बंसाली, मैं यहाँ पे पाव भाजी का बाखड़ा खुल के बैठा है, तुम लोग आओ, तुम लोग नाश्ता करो, तुम लोग को अच्छा लगेगा और तुम लोग जाओ. इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो मैं भी उसके मूवी से उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है. एंड देन आई there are expectations from his movies. We will हाँ discuss whether expectations are right or wrong. हाँ, ऑब्वियसली नहीं, वैसा एक्सपेक्टेशंस तो है, मेरे को है भाई कि पिछले बार से ज्यादा गाड़ियां उड़नी चाहिए, बट नॉट इन अ सटायरिकल वे, लाइक वी आर Yeah, बोथ स्टैंड कॉमेडियंस एंड yeah, देयर इज अ परसेप्शन ऑफ थिंग्स, राइट? कि रोहित शेट्टी का hmm, एक परसेप्शन है कि उसके मूवी में लॉजिक नहीं है, फिजिक्स नहीं है, एंड आई एम लाइक उसके मूवी में लॉजिक और फिजिक्स कभी भी नहीं था, तो अभी भी मत yes. ढूंढो. आई एम लाइक He ये क्या never बकवास claimed है. that. हाँ, मतलब उसने कभी बोला नहीं है कि मैं बैठ के अगला ओपनहाइमर बना रहा है, तो तुम लोग मत ढूंढो ना उसमें. और Otherwise, hmm, if I were to look उसमें at the trailer, yeah, if I were to look at that trailer from a perspective of a Rohit Shetty fan, then I would have my own complaints. But those complaints were not the complaints जो दुनिया कर रही है कि अरे इतने explosions क्यों हैं, इतनी गाड़ियां क्यों उड़ रही है, इतने सारे लोगों की entry क्यों दिखाई जा रही है. I want that. I need that. I'm a sucker for that. So like for that, I'm pretty much up for it कि भाई दिखा मेरे को. thing. If you are going to watch the movie for nuance, मत देखो movie. हाँ, If you are going to watch it for subtlety, मत right देखो. है. There is logic to his movies. There is logic to his movies, but it is a different logic. Obviously. Logic in the sense there is rule of cool. कि if something is logical and if something is cool, and what is cool is better than what is logical, the Yeah, cool part will always be preferred. obviously. वो लॉजिक गोज आउट द विंडो उसके जस्ट लाइक द विलन्स आर फ्लाइंग, वो तो ऑब्वियस ही बात है. yes. हाँ हाँ उसके बाद में where his artistry lies is in constructing scenes. एकदम जो तुमको scenes तुमको rile up कर देते हैं ना कि कि मतलब you राइट. must feel bad for this guy. He will make you feel bad for this guy or he will make you feel outraged. वो सब वो राइट बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है. Sometimes राइट he is making remakes, right? उस remakes में
he doesn't take remakes as it is. वो उसमें जो खुद के एलिमेंट्स डाल रहा है वो भी काफी क्राफ्टी एलिमेंट्स होते हैं। तो कभी कभी मैंने पहले भी बोला हुआ है ये तुमसे प्राइवेटली कि वो कॉपी भी करता है तो कभी कभी इंप्रूव कर देता है सीन को। उसने सिंघम रिटर्न्स में मिशन इम्पॉसिबल 3 का एक सेक्शन थोड़ा इन्फ्लुएंस लगता है जहां पे एक एक्सप्लोजन होता है एंड ही गेट्स let's keep it like this. उठाया ही है, ठीक है? Influence is not a word. उठाया ही है because the way how it is being shot, the location, the way how that explosion happens, and Ajay Devgan is like exploded on the other side, not front or yes back, other side. yes It is taken up from Mission Impossible. वो तो है ही. तो let's not expect originality from Bollywood. कभी मिल गई तो अच्छी बात है, but मैं हाँ expect तो नहीं करूँगी, अरे right? ड्यूड आई विल डिसएग्री हियर। वो मतलब वो काफी सारी चीजें ओरिजिनल करता है। वो उसने हाँ, सिंघम का जो मतलब तमिल का रीमेक जो उसने हिंदी में किया है उसमें एंडिंग में एक सीक्वेंस है वेयर प्रकाश राज जो है ही इज कॉल्ड अपॉन बाय पुलिस ऑफिसर टू गो इनटू अ सेफ हाउस। व्हेन ही गोज इनटू अ सेफ हाउस वहां पे 100 पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं एंड दे आर गोइंग इनटू एन एक्सटेंडेड डिस्कशन कि इसको मारना कैसा है। हाँ, फैमिली मूवी में एकदम डार्क ह्यूमर है और हाँ. ये ओरिजिनल मूवी से नहीं है, ये रोहित शेट्टी के It is. दिमाग की उपज है। हाँ. तो So like when the apparently I don't know if you know the story, but प्रकाश राज को जब भी साइन किया गया था ना फॉर हाँ सिंघम, तो उसको बोला था कि करेगा क्या तू? तो प्रकाश राज बोला कि मतलब हाँ कर लेगा. तो बोला ये रहा स्क्रिप्ट, पढ़ ले इसको. तो प्रकाश राज बोलता है मैंने किया हुआ है ना ओरिजिनल, स्क्रिप्ट पढ़ के क्या करेगा? फिर जब हम्म, स्क्रिप्ट पढ़ा बोलता है अबे ये सब कहाँ से आ गया? और ये सब एंडिंग देख के वो बोला ये क्या है मतलब, और मतलब वो खुद भी सरप्राइज हो गया था कि तू पूरा एंडिंग एक बंगले में खत्म कर देगा. तो बोला हाँ ये है, दिस इज व्हाट इट इज, व्हिच इज सो रियली इंटरेस्टिंग. यस तो ओरिजिनलिटी है इस आई मीन रोहित शेट्टी के पास ओरिजिनलिटी है। व्हाट आई मीन नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो कॉपी करता है ओके करता है देयर एन इन्फ्लुएंस बट ही हाँ. इम्प्रूव्स अपॉन इट। अगर तू MI3 का सीन देखेगा विच आई विल ऐड इन एडिट्स, अगर तू MI3 का सीन देखेगा और सिंघम 2 का सीन देखेगा जहां पे ही गेट्स थ्रोन इनटू द जीप, रोहित शेट्टी ने एक एडिशनल एडिटिंग ट्रिक यूज करके ही हैज मेड अजय देवगन का जो स्लैम है ही इट फील्स लाइक ही हैज स्लैम्ड मच हार्डर देन टॉम क्रूज। उसमें एक पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगा, उसने अपना दिमाग लगा के कहा। तो राइट. दिस इज वेर यू अप्रिशिएट रोहित शेट्टी कि ये दिमाग लगाता है, जहां जहां उसको लगाना होता है वो लगाता है वो दिमाग। But then how much of it is practical versus special effects? Because Rohit Shetty does a lot of stunts which are practical, right? Like जिसके वजह यस से like I fucking hate this crap जब भी some director like a Siddharth Anand says कि मतलब वो ही गाड़ियां उड़ाना और वही सेम चीजें मैं नहीं करता, I do something new, और फिर वो पठान जैसी फालतू मूवी लेके आता है जहाँ पे मतलब I saw all the action and all the action was fake as fuck. यस मतलब मेरे को ना ये समझ नहीं आता है कि जो शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन सीन है उसमें शाहरुख खान इज इन अ रूम, ओके, शाहरुख खान इज इन अ रूम जहाँ पे मतलब टेररिस्ट लोग उसको अटैक मतलब वो घेर के रखे हुए हैं, और जब उसका इंट्रो सीन है वहां पे शाहरुख खान के बाल हवा में उड़ रहे हैं, ओके, उसके बाल या हवा में उड़ रहे हैं. या लेकिन उसी मूवी के अंदर आगे जब भी शाहरुख खान एक ट्रेन के ऊपर सलमान खान के साथ फाइट कर रहा है, सलमान खान इज विद हिम और वो रशियन लोग के साथ फाइट कर रहा है, उस टाइम पे वो ट्रेन के ऊपर चलते ट्रेन के ऊपर है और शाहरुख खान के बाल नहीं है. व्हाट द फक डूड, व्हाट द फक. यार सिद्धार्थ आनंद को छोड़ दे यार। आई एम नॉट ऑफ अब मैं तभी से उससे गुस्से में हूँ जब वो हेलीकॉप्टर को ऐसे परपेंडिकुलरली ऊपर लेके जाता है तो हाँ मतलब नो मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू कि उसके वहां पे तुम वो फिजिक्स का लॉजिक भी मत लगाओ, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देन फकिंग डोंट बी कॉन्डेसेंडिंग ना. कि या तेरा तेरा जो मूवीज है जैसे बैंग बैंग था, मुझे बहुत एंजॉय हुआ है, बैंग बैंग वॉर भी मुझे बहुत एंजॉय हुआ है, पठान भी मुझे ठीक एंजॉय ही हुआ है, बट आई एम लाइक फॉर अ पर्सन हु लाइक रियली लाइक्स एक्शन एंड हु वाज लाइक मैंने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैकी चैन के मूवीज देखे हुए हैं बिकॉज दैट वाज लाइक एब्सोल्यूट रॉ स्टफ, राइट?
एंड देन Yeah. केम मार्वल जहाँ पे सब कुछ ही सीजीआई है. देयर आर टाइम्स जहाँ Yes. पे एक्टर्स अंदर सीजीआई में इंसर्टेड है. सो Yes. आई एम अ फैन ऑफ बोथ ऑफ इट. ओके, ओल्ड स्कूल भी उसका मैं फैन है, नए स्कूल का भी मैं फैन है. रोहित शेट्टी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स ओल्ड स्कूल विच आई रियली लव. इसके लिए मेरे को ये ट्रेलर भी मेरे को बहुत ज्यादा एक्शन वाइज मेरे को ऐसा लगा कि भाई क्या डिटेलिंग है इस आदमी की. लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट आई डोंट रियली लाइक इज जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ entire CGI based action scene is being created and then it fucked up in a way कि मतलब तू इतना बेसिक चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है तो मतलब कैसा काम चलेगा. That's अभी where तू I'm किसका like, क्रिटिसिज्म कर रहा है? नहीं नहीं, आई एम क्रिटिसाइजिंग पठान ओनली और आई एम क्रिटिसाइजिंग अच्छा, सिद्धार्थ right. आनंद ओनली. Yeah. all I'm saying is all I'm saying is those little details. Like MI में अभी मुझे नहीं पता उसमें कितना CGI यूज किया है. It was Yeah, made yeah. in early 2000s, तभी CGI अच्छा भी नहीं था. But Hmm. that one extra impact is I think maybe because practicals में बहुत ज्यादा उन लोग यूज करते हैं तो could be that thing. नहीं 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 नहीं, द एक्स्ट्रा इम्पैक्ट इज बिकॉज एडिटिंग का ट्रिक है. तो व्हाट हैपेंस Extra इज, हाँ extra frames. हाँ, यस, रोहित शेट्टी रिमूव्स 1 or 2 frames, जिससे जो ये मूव होता है बीच बीच के निकल जाता है, एंड व्हाट यू गेट इज ये और ये, एंड इट Right, फील्स गोइंग फास्टर, एंड right, right. उसकी वजह से द स्लैम फील्स हार्डर. Makes बहुत ही sense. चीप ट्रिक है बट इफेक्टिव ट्रिक है. एंड Yeah, of course. और ये क्या है, गाड़ी उड़ाने, अच्छा ठीक है, फाइन, आई गेट कि गाड़ी उड़ाने के ऊपर से क्रिटिसाइज कर रहा है, बट आई बेट कि वो जब भी गाड़ी उड़ाता है, हर गाड़ी उड़ाना इज डिफरेंट देन अर्लियर गाड़ी उड़ाना. तो हाँ कुछ हाँ. गाड़ी, I mean, तो even if it is, I don't care. If I like that, I want more of that. That's how sequelitis works. यस, सीक्वल नहीं ऐसे करते हैं ना कि फर्स्ट में ये चीज अच्छी हुई थी, सेकंड में और ज्यादा अच्छी करो. लाइक ऑल्सो लाइक ओके, लेट्स टॉक अबाउट सिंघम का ट्रेलर. इट इज अ 4 minute 58 second का ट्रेलर. ओके, यस, and I do admit that it is very long. For a like Marvel sucker, I do understand कि भाई तेरे को हर एक की एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं थी, या अगर तू हर एक की एंट्री दिखा दे तो तुझे स्टोरी रिवील करने की जरूरत नहीं थी. अगर तू स्टोरी भी रिवील करता है तो तुझे उसके इमोशनल सीन्स दिखाने की जरूरत नहीं थी. ओके, इट कुड हैव बीन अ बेटर ट्रेलर. इनफैक्ट अपन ने एक फैन मेड ट्रेलर देखा भी था जो कि यस, हार्डली 1.5 मिनट और 2 मिनट के अंदर के अंदर अंदर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. मतलब यस, उसके अंदर इतने एंट्री सीन्स अच्छे से दिखाए हुए हैं. दे हैव हैड इनफ ऑफ द स्टोरी. एट द सेम टाइम द मीट इज नॉट बीन रामायण, so let's use another word. The crux of the story is not being shown over here. Okay, the like जो story जिसके वजह से वो आने वाला है वो वहाँ पे शो नहीं हुआ है. और वो जो फैन में ट्रेलर था, हम लाइक भाई ये अगर तूने बाहर डाल दिया होता ना तो it would have had a better impact maybe. I don't know. I doubt. Matlab, better impact, we are in the grounds of speculation here. But whatever anticipation this one generates, I मतलब reasonably speculate कर सकते हैं कि वो 1.5 मिनट के ट्रेलर से भी होगा. We will add that trailer in the link for that trailer in the description. तो उस जो anticipation था वो किसी हाँ entrances का मोहताज नहीं था. If you just said Singham 3 and करीना किडनैप हो जाती है, इतना काफी था for people to watch it. हाँ, could have been, but I'm like लोगों को ऑलरेडी पता है ना, ये सब तो न्यूज में आ Yeah, चुका है कि yeah, ये yeah, लोग सब एवरीबडी नोज इट कि ये लोग सब आ रहे हैं. ओके, तो आई डोंट yeah, रियली थिंक कि उसको हाइड करने का कोई पॉइंट था. द yeah, cameos which are being discussed, let's not talk about that, but the ones which were confirmed by people or production in their own on their own Instagram pages and stuff, तो वो तो खैर डालना बनता ही था कि भाई ये लोग आ रहे, तुम लोग मतलब तुम लोगों को पता ही है तो इसमें क्या बोलने का. yeah, द थिंग कि जो नहीं आ रहे या जो आने का चांसेस है वो अगर हाइड भी, अब पता नहीं ना अपने को भी कि कितना इसमें हाइड हुआ है. yeah, लाइक yeah, फॉर एग्जाम्पल लाइक पीपल क्रिटिसाइज द ट्रेलर ऑफ सूर्यवंशी व्हेन इट केम आउट कि 3.5 okay, मिनट का ट्रेलर है, स्टोरी रिवील्ड है, एवरीथिंग. बट लाइक व्हेन आई वॉच द मूवी, जो लाइक फॉर एग्जांपल जो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस है उसका, ओके, आई फकिंग लव इट बिकॉज अ 90s kid and an Akshay Kumar fan, that helicopter sequence is straightly lifted and then improved from सबसे बड़ा खिलाड़ी, जहाँ पे yes, if you have seen that movie, उसके yeah, अंदर yeah, अक्षय कुमार इज ऑन अ बाइसिकल. वो बाइसिकल से हेलीकॉप्टर पे लटकता है और फिर वो हेलीकॉप्टर से लटकते हुए वो मोनिश बेल को पकड़ता है. ही इज इन अ कार और yes, समथिंग.
और वो हवा से उठाता है, which was again inspired from Tom and Jerry का कोई episode. So Akshay Kumar was like, yeah, it was from a Okay. Tom and Jerry episode. So Akshay Kumar was like, "Can we do this in a movie?" And Akshay Kumar did that in a movie. Okay. Now that entire same thing was also shown in the trailer. But in the trailer, the only sequence was वो बाइक से हेलीकॉप्टर पे जाता है. Hmm. For a fan, I could have made that speculation कि शायद ऐसा कुछ होता रहेगा. But they never shown us सिकंदर खेर on a jet ski कि मैं उस साइड सोच भी सकूं. So that was something which was interesting. Similarly, climax में दुनिया भर का एक्शन था जो अपने को नहीं बताया गया था. Yeah. तो इट कुड बी पॉसिबल कि बहुत सारी चीजें अभी भी अंडर रैप्स है. आई डोंट नो. सो आई एम रियली लुकिंग टू इट कि क्या होएगा उसमें. ये मैं प्रेडिक्शंस में देखने वाला, प्रेडिक्शंस में प्रोबेबली वी विल गो फॉर क्या क्या सीन्स हो सकते हैं और क्या क्या हाँ, सीक्वेंसेस हो सकते हैं. तो या बट आई प्रीटी श्योर कि बहुत सारा क्रक्स जो है लाइक उन लोग ने उसमें भी जो मेन स्टोरी था वो तो रिवील कर ही दिया था कि स्लीपर सेल एजेंट्स है. देयर इज सम या 600 टन का आरडीएक्स व्हिच इज मिसिंग. ओके, आई या गॉट या दैट. बट नाउ द एग्जीक्यूशन इज व्हाट यू हैव टू सी ना हाँ कि वो बस कैसे होता है. और हाँ उसी के लिए मूवी में जा रहा है. आई मीन इवन ऐसा भी नहीं है कि मूवी ऑल्सो इज नॉट दैट सटल. वो अगर बैक स्टोरी एस्टेब्लिश करना है तो कोई कैरेक्टर सीधा मुंह से बोल देता ही है. ये बचपन में गरीब था, इसकी ऐसी बहन थी, इनका बहुत प्यार था. वो दिखाने में आई हैव सीन रोहित शेट्टी डजंट स्पेंड टाइम. वंस यू राइट. गेट द इमोशनल बेसिस करेक्ट, उसके बाद में ही इज गोइंग फॉर द एक्शन सीक्वेंसेस जहां पे तुम्हारा हाँ, पैसा वसूल होना है. और ऑल्सो लाइक स्टोरी कब से मैटर करने लग गया रोहित शेट्टी के मूवी में. लाइक स्टोरी इज जस्ट अ ग्रेवी कि मतलब हाँ इसको भी डाल देते हैं. अच्छा, ऑल्सो इफ यू वर टू थिंक अबाउट इट लाइक व्हाट अबाउट द सीन्स व्हिच वर इन द ट्रेलर बट दे मे नेवर कम ऑन स्क्रीन. व्हाट अबाउट दैट? Oh, has it happened in Simba and Suryavanshi and Singham too? सूर्यवंशी सूर्यवंशी में हुआ है. सूर्यवंशी में देयर इज एन एंटायर सॉन्ग which was I think Naja Naja was the song जिसमें अक्षय कुमार और कटरीना बहुत यंग होते हैं and they have this entire song which is picturized on an air base maybe जहाँ पे पीछे बहुत सारे एयरप्लेन्स है और वो बाइक चला रहा है Oh, और कटरीना कैफ आगे बैठी है and that song was never in the movie. holy mother of God. ये तो मुझे वापस देखना पड़ेगा. Somehow that was not in the movie. At the same time टिप टिप बरसा was completely hidden from all the promotions कि ये अगर तुमको देखना है थिएटर में ही देखना पड़ेगा. उसका एक भी फ्रेम एक भी शॉट कहीं बाहर पब्लिक नहीं था उस टाइम पे. एवरीबडी वाज स्पेकुलेटिंग कि अभी आएगा टिप टिप बरसा पानी बिकॉज एवरीबडी न्यू कि वो सॉन्ग तो है मूवी में. हाँ बट दैट सॉन्ग वाज नेवर नेवर मेड पब्लिक अंटिल द मूवी रिलीज कि दिस इज समथिंग यू विल हैव टू वॉच इन थिएटर्स ओनली. सो आई एम लाइक पता नहीं इस बार क्या. और एंड ही हैज अ knack of remixing songs and somehow making it better, right? So सूर्य सिंघम अगेन में I have no clue कि वो कौन सा गाना उठाने वाला है अगर वो उठाएगा भी तो. यार Because it tracks ओके like मतलब हाँ गोलमाल अगेन मतलब जैसे सिम्बा में आंख मारे था. सिम्बा में आंख मारे था. गोलमाल अगेन में इट वाज इश्क का गाना राइट. वो कौन सा वाला नींद चुराई मेरी. नींद चुराई मेरी. हाँ, सूर्यवंशी हैड दिस वन जो अपना सूर्यवंशी. सिम्बा में इनफैक्ट दो गाने थे. सिम्बा में एक वो भी गाना था ना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा. वो वाला गाना भी उसमें था ना नुसरत फतेह अली खान का Oh, damn. I which was did not sung recognize. which was sung by Rahat Fateh Ali Khan. So that was there and then Suryavanshi had Tip Tip Barsa Pani. So Singham again में ऐसा कुछ अब तक पता तो नहीं है अपने को. But if that trend continues then you never know which Ajay Devgn song might be in Uh, there. सिंघम अगेन और सिंघम में उसने कोई सॉन्ग नहीं उठाया बट दीज आर द लेटेस्ट वन. तो शायद उठाया होगा बट अगेन वो सॉन्ग उठाया था जिसमें कुछ नॉस्टैल्जिया वैल्यू कनेक्ट होता है उसके कास्ट से. और अगर वो बीड़ी जला के लिए उठा लिया तो it is that right. You got yeah, Ajay Devgn, you got Kareena Kapoor. So yeah. you never know. Predictions. Dude, I'm looking forward to that. कि मतलब these are the things, these are the elements I'm looking forward to कि ऐसा कुछ होना चाहिए. Yes. अब wait a second. We have talked about expectations. कि एक ट्रिविया सुनेगा क्या? हाँ एक ट्रिविया सुनेगा? हाँ बता.
So सूर्यवंशी में अपन बात कर रहे थे ना टिप टिप बरसा पानी की. So Yes. you know how like he ensured that the original singers are back in this. Now I'm not sure whether they have sung again or whether they have used the vocals and then they have Hmm. modified it accordingly. Like so Udit Narayan और अलका याग्निक इसमें वापस है, right? हाँ. What's weird? What's weird is कि इसका जो म्यूजिक कंपोजिशन है वो तनिष्क बागची ने किया है, just like every single remix that is being done. Remix. Yeah. But लिरिक्स में आनंद बख्शी का लिरिक्स है ओरिजिनल में, और यहाँ पे Hmm. लिरिक्स का क्रेडिट जो मैंने विकिपीडिया किया था, इसमें लिरिक्स का क्रेडिट है आनंद बख्शी और तनिष्क बागची को. तनिष्क बागची ने इस लिरिक्स में एक वर्ड ऐड नहीं किया है. आई एम श्योर कि मतलब एक पूरा अंतरा निकाला है, बट निकालने का क्रेडिट लिरिक्स को कब से मिलने लग गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. Are आई you एम sure कि मतलब उसने बीच में कुछ रैप मतलब बैकग्राउंड के रैप में भी कुछ नहीं डाला उसने? नहीं 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 आई एम श्योर अबाउट दैट भाई. एज अ अक्षय कुमार फैन आई एम श्योर अबाउट इट कि नहीं, वो गाना मैंने जितनी बार सुना है ना, आई एम श्योर कि कोई रैप वैप तो नहीं है बीच में. उनका मतलब दो ही वो पार्ट है, जो मेन सॉन्ग है वो, और फिर अंतरे में खाली वो हाँ वो डू 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 बा इज 3 times. इसमें ही Tanish Bakshi does it only 3 times. Do ba, and that's how it is. So maybe that's where he is like, okay, that's my creative inputs in lyrics. But uske alawa, I don't really remember anything being changed in that song. All the all the words are exactly the same. So I'm like, ये lyrics का जो पूरा rights का issue है. I don't really understand how does one get credits on lyrics, you know? ओ, एक मिनट मेरे को ये एक बार मैं फैक्ट चेक करूंगा. नॉट दिस दिस इन एडिशन टू एक वे आउट Or हो you can सकता है कि you can listen to both the songs. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब they are good या songs and या somehow the remix is good, so like why not? remix का है. At the same time, I'm wondering if soundtrack has some element that has been contributed by Bakshi instead of the in the movie. हाँ, but soundtrack का उसको अलग से, composition का उसको अलग से मिलेगा ना credit. But Oh, like okay. in lyrics, he has a credit of sharing lyrics with he's sharing credits with Anand Bakshi on that. Anand Bakshi. And I'm like ये मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि how is this happening? uh, quite brazenly. Yeah. हाँ, obviously मतलब still not able to grasp that कि how does that work कि तुम आके 3 बार डू निकाल दो और बोल दिया कि बस भाई ये मेरा ओरिजिनल है. क्या मतलब हो गया Uh, इंस्पायर में. अब ये तो मतलब ए आर रहमान के साथ हो चुका है. आनंद बख्शी तो फिर भी नहीं है तो खैर. हाँ uh, मतलब मसक अली का अगर मेरे को रीमिक्स सुनना पड़े ना, तो मैं अपने आंख में चाकू डाल दूंगा. आई डोंट वांट टू वॉच दैट. मतलब मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता वो. तो मैंने उसको एक बार सुना था, वो भी मैंने 30 सेकंड में बंद कर दिया था. Like unlike आँख मारे या unlike टिप्पे बरसा पानी, because they have been at least treated in a decent way. आँख मारे yeah, में yeah, जो वो एक दो लाइन के लिए कुमार सानू आता है ना, I'm like चल भाई respect. You have at least yeah. given that due to the guy who has been the voice of that song for Uh, generation. hat So tips वगैरह जो भी, but it was done quite well and quite respectively and also creatively. मतलब हाँ तूने जो उसका डिकंस्ट्रक्शन किया था, मैं right हाँ सिर्फ एक ही क्रिएटिव पॉइंट देख रहा था which I still believe is quite creative कि उस गाने में जो EOA होता है, he हाँ connected that to that was तुषार कपूर. Tushar Kapoor and Right हाँ this कुछ भी बोलो यार, दिस इज क्वाइट क्रिएटिव. उसके बाद में जो डाल रहा है वो अगेन इट इज उसमें और वो बैक टू बैक आ रहा है ना वैसा वापस के. You can't really register it unless you see it that many times. So यस it's like public वो skip मार के चली जाएगी कि हाँ ठीक है. So but then when you watch it you're like अरे हाँ रे, मतलब दिमाग तो लगाया इसने, इतना भी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड उठाया नहीं उसने. यस. इवन अरशद वारसी का इंट्रो भी बहुत स्ट्रेटेजिक था उसमें. हाँ तो हाँ. And तो on the cue, it is on the cue. यस जब ये होता है कुमार सानू की आवाज में, and it's on the cue जब भी कुमार सानू की आवाज आती है और अरशद वारसी सोलो कर रहा है. So I'm like भाई ये कैसे, मतलब how can you hate this no matter what यस you do. एग्जैक्टली. वंस यू डिकंस्ट्रक्टेड द सॉन्ग, मैं फैन बन गया रोहित शेट्टी का कि
he is मतलब putting thought. He is putting thought in everything there. Uh, बस अगर तुमको अगेन इफ यू आर लुकिंग फॉर योर मतलब फिल्म क्रिटिक वाला नजरों से देख रहे हो जहां पे तुमको कमेंट्री या फिर कंसिस्टेंसी देखनी है तो देन प्रोबेबली इट्स नॉट फॉर यू बट ही इज ओके, पुटिंग थॉट्स इनटू इट राइट, ओके, ओके, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं. ओके, देयर इज दिस मीम गोइंग on internet यस about how the casting of Rohit Shetty characters in the cop universe is absolutely fuck all. Okay, या ये वो जो उसका था कि पहले में विलन का चमचा था, दूसरे में लॉयर है, सिम्बा में हाँ सॉरी वो लॉयर है, फिर जो सिंघम की रिपोर्टर थी वो सिम्बा में जज है, करीना जज है कपूर इफ पांडे कम्स इन तो मतलब ये प्रॉब्लम है. सो लाइक अगेन आई हैव टू एज अ फैन आई वुड want to defend this, but I would not want to defend this by a universe building logic. Okay, a universe ओके building takes time, and a universe is not four cops working together. A universe is very big. Universe is not four cops working together in a country कि भाई एक मुंबई का पुलिस, एक सिंघम जो है वो जो कि गोवा का पुलिस है, एक मीरामार का पुलिस है, ये चार लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो इसको मैं यूनिवर्स नहीं बोलेगा. यूनिवर्स हैज टू बी एटलीस्ट प्लैनेट्स. तो इंडिया में जब भी हम लोग ये बात करें ना यूनिवर्स बिल्डिंग, ज्यादातर वहीं पे फकअप हो रहे हैं कि भाई ये यूनिवर्स नहीं है. यू कैन कॉल दिस वर्ल्ड बिल्डिंग, यू कैन कॉल दिस लेट्स से शेयर्ड कंटिन्यूटी, पर यूनिवर्स या तो मत बुला इसको. मार्वल जो यस है वो अलग टाइमलाइंस पे चल रहा है और तुम यहाँ पे चार पुलिस स्टेशन के बीच के कहानियों को लेकर चल रहे हो. एक मुंबई का, अगर एक मुंबई का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एक दिल्ली का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एक गोवा का एसीपी है, एक कोई जो इसका क्या नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेस, शिवगढ़ का अगर कोई इंचार्ज है, ये चार लोग अगर मिलके आ गए और लेट से अगर आगे जाके दीपिका पादुकोण जो साउथ के किसी स्टेट से जो भी मतलब वो इट इज एज लाइक इट इज एज ब्लेटेंट एज इट इज कि साउथ में है कि इस एरिया का इंचार्ज कौन है. अगर ये पांच या पुलिस वाले एक साथ रहे तो दैट इज नॉट अ यूनिवर्स. लेट्स लाइक नॉट कॉल इट अ यूनिवर्स. ओके, it is it is just a shared continuity और shared continuity में we have seen that before also. जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में भी हमने देखा है कि जो इसका क्या नाम है यार वो जिमी शेरगिल का कैरेक्टर टैक्सी ड्राइवर वेट अ सेकंड Zahir. अल्ताफ Zahir. जहीर हाँ सॉरी Zahir is the guy in the first one. He dies because of tuberculosis. और सेकंड या में उस आदमी का नाम, उसका धर्म और उसका काम सब कुछ बदल गया है. He is Victor यस D'Souza and he drives या a taxi and उसका बाप परीक्षित साहनी है. So I'm like ऐसा हमने पहले भी देखा हुआ है जहाँ पे कि कोर कैरेक्टर्स जो है वो सेम होते हैं, बाकी कैरेक्टर्स जो है बदले जाते हैं. एंड इंडिया में nobody gives a fuck about a continuity. So why the fuck are you giving a fuck about a continuity? जैसे मार्वल में they are very strategic about hiring people. Despite that they have done castings where they have taken same person twice or thrice. या ऐसा वहां पे भी हुआ. Like Gemma Chan was in Captain Marvel and then she was in Eternals. वहां पे उसका साइड रोल था, यहाँ पे उसका लीड रोल था. And those two characters have nothing to do with each other. They या have the same faces and let's move on with that. ऐसा भी नहीं कि मल्टीवर्स, यहाँ पे लोग बात करें कि अरे मल्टीवर्स में ये चल रहा है ना, चुलबुल पांडे मल्टीवर्स. अबे क्या मल्टीवर्स, काय का मल्टीवर्स, सब लोग इधर ही है. कब से तो कानपुर को कब से अलग टाइमलाइन में लेके चलने लग गया. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. लाइक लास्ट चुलबुल पांडे वाज इंचार्ज ऑफ कानपुर, राइट? अगर वो आता भी है तो कानपुर कोई अलग यूनिवर्स है क्या? इट्स एज सिंपल कि भाई समझ के चलना कि हाँ लोग हैं सेम शक्ल के, सात लोग होते हैं और भूल जाओ उस बात को. इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. मतलब इट इज नॉट इम्पोर्टेंट पर वायरल कंटेंट बनाना है तो हाँ, लाइक सी एज अ कॉमिक आई अंडरस्टैंड दैट क्या बोलते हैं दैट अर्ज टू डू योर म्यूट. अगर चुलबुल पांडे अगर आता है इस सिंघम यूनिवर्स में, विच इज अ स्पेकुलेशन, विल टॉक अबाउट इट लेटर. अगर वो आता है और लाइक दे आर सेइंग कि अरे पर करीना कपूर तो ऑलरेडी अजय देवगन की वाइफ है तो फिर वो फेविकॉल के गाने में कैसे आ गई, तो आई एम लाइक एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लेके चलना कि एक शक्ल के सात लोग होते हैं, इससे ज्यादा दिमाग मत लगा. क्यों तेरे को इतना ये चलना है कि भाई ये मल्टीवर्स में है या टाइमलाइन क्रॉस किया है? कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है? इट इज द सेम एक्टर बीइंग कास्ट ट्वाइस and forget about it. Let's not make it more complicated than it is, because you are thinking more than the director is thinking right now. Director भी इतना नहीं सोच रहा है. तो तुम नहीं क्यों सोच रहे हो? आई बिलीव डायरेक्टर ने सोचा मतलब वो जो वायरल कंटेंट था आई बिलीव उसने मजाक में बोला था कि अब हम मल्टीवर्स मान के चलेगा. आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग इट सीरियसली. ही इज जस्ट उसने कभी नहीं बोला ये. उसने कभी नहीं बोला ये.
बाकी फैंस जो डिफेंड कर रहे हैं वो, और जो ओ मतलब उसको जो मतलब अपोज कर रहे हैं वो उन लोग के बीच की बात चल रही है कि एक बोल रहा है अच्छा कि अरे ये सेम कैरेक्टर्स दो इसमें कैसे आ गए, एंड द अदर वन इज लाइक अरे मल्टीवर्स नहीं मालूम है क्या तेरे को, एंड हम लाइक क्या मल्टीवर्स ब्रो, अरे यार ये नहीं मल्टीवर्स मिला तेरे को, तो आई डोंट। कंसिडर कंसिडर इट मोर लाइक, हाँ तूने जैसे बोला लगे रहो मुन्ना भाई, कि ये लोग हाँ, रिपीट हो रहे हैं, या मतलब होने दो इनको। चार्ली चैपलिन जब भी द किड में उसको बच्चा मिलता है तो उसके अगले मूवी में कोई ये नहीं बोलता ना चार्ली चैपलिन को कि तेरा बच्चा किधर गया, तू कहाँ हाँ अकेले घूम रहा है, वो हो गया, वो कहानी खत्म हो गई, वो सेम कैरेक्टर दूसरे मूवी में है और बाकी लोग को भूल जाने का, इतना कुछ हेडेक वेडेक नहीं रहने का। तो जो टाइटल कैरेक्टर्स है वो मैटर करते हैं, बाकी लोग नहीं करते, बाकी लोग या जो अब है। बाकी लोग इधर इधर से कहीं से भी आ जाए, चले जाए, जस्ट लुक एट देम फॉर मोमेंटरी सीन का एग्जिस्टेंस, उसके बाद में उनको छोड़ दो। और जस्ट थिंक ऑफ इट एज गुड एक्टर्स कि वो अच्छे एक्टर्स थे जिसको रोहित शेट्टी ने रिपीट किया और कुछ नहीं, उससे ज्यादा या दिमाग नहीं लगा। या तो दैट। that that is there. Having said this, I still look forward to some मतलब इन वर्ल्ड रेफरेंसेस, जैसे उसने सर्कस में किया था। ही कॉन्स्टेंटली रेफर्स टू हिज अदर मूवीज थ्रू हिज मतलब लेटर मूवीज, तो आई स्टिल बट लुक फॉरवर्ड। पार्डन। ऐसे अगर लॉजिक लगाना है तो सिम्बा हैज अजय देवगन इन इट एंड यस सिम्बा हैज गोलमाल बॉयज इन इट, बट द गोलमाल बॉयज डज नॉट हैव अजय देवगन इन इट। यस सो यस does it happen कि गोलमाल बॉयज आर इन द सेम यूनिवर्स लाइक सिम्बा नहीं नहीं नहीं। एंड दे आर लाइक अरे पर ये तो अपना गोपाल है, एंड देन दे आर लाइक अरे पर ये तो सिंघम है। एट द सेम या टाइम गोलमाल 4 ओपन्स विद अ सॉन्ग जहाँ पे गोपाल जो है बार बार अपने स्टेप्स भूल रहा है और वो गोलमाल के स्टेप्स के बीच में वो सिंघम के स्टेप्स कर रहा है। सो अगर तू ऐसे ही अगर अपने आप को नेविगेट कर रहा है तो फिर 50 चीजें ना नेविगेट करने के लिए, उसमें क्या है। या तो सो तो सो एक मूवी में गोलमाल 3 में गोपाल की बीवी इज करीना कपूर। सो नाउ यस टेल मी हाउ डज दैट वर्क। दो सॉरी दो इट्स आल्सो इन गोलमाल रिटर्न्स। रिटर्न। यस हाँ, सो नाउ टेल मी हाउ डज दैट वर्क। तो वो तो इट मतलब भूल जा ना, खत्म कर उसको। या दे I mean, consistency मध्ये references देख, and references are usually very creative. वो देख के खुश हो जाओ and continue. This is consistency is not something to look for if you want to enjoy the movie. पर तो references you can see, हाँ? मेरे को ना अभी भी लगता है कि रोहित शेट्टी से अच्छा मेटा राइटिंग कोई नहीं करता है, एटलीस्ट इन बॉलीवुड मेटा राइटिंग। आई मीन ओके लेट्स कीप वन टेक वन मूवी अंदाज अपना अपना एंड कीप इट असाइड, Yes, ओके, बिकॉज अंदाज अपना correct. अपना मेरे गॉड लेवल कॉमेडी है व्हेन इट कम्स टू हाँ, मेटा रेफरेंसेस। उसके yes, अलावा अगर मैं किसी भी मूवी में देखूं, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे मतलब ऐसा हुआ है कि मेटा कॉमेडी बहुत जगह पे हुई है, बट इन टर्म्स ऑफ रोहित शेट्टी फिल्मोग्राफी आई डोंट रियली सी anybody doing a meta even that one single line जहाँ पे गोलमाल रिटर्न्स में नहीं वो तुषार कपूर होता है, एक करीना कपूर हाँ, होती है, तुषार कपूर जो होता है करीना कपूर का भाई होता है उसमें, और करीना या कपूर का नाम उसमें एकता होता है, या और बाद में अजय देवगन उसको बोलता है कि जिसने भी तेरी बहन का नाम एकता रखा है ना बहुत सही किया है बिकॉज शी इज इनटू डेली सोप्स, एंड आई एम लाइक भाई क्या मेटा लेवल रेफरेंस है ये, यहाँ पे दिमाग फटना नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए। या हैव यू सीन गोलमाल 2? आई हैव सीन गोलमाल टू। बाय द वे मैं बोलना चाहूंगा कि इवन रोहित शेट्टी इज नॉट अ फैन ऑफ दिस मूवी। I get it, I get it. मतलब nobody should be. It is a crap movie. But like I said, अभी इंस्टाग्राम पे दो ही चीजें चल रही है ना, अच्छी मूवीज जो है उसको ओवररेटेड बोलते हैं, और जो गंदी मूवीज है उसको वो लोग बोलते हैं ये तो लेजेंड थी, वाई इज दिस हाँ अंडररेटेड बोलते हैं उसको। इट इज दैट अच्छी मूवीज हमेशा ओवररेटेड है और बुरी मूवीज हमेशा अंडररेटेड है। इसके अंडररेटेड लिए या अभी लाइक चांदनी चौक टू चाइना के दो सीन्स लोग निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मूवी 2011 में कैसे नहीं चली, 11 में या जो भी उस टाइम के या दौरान ही 10 के आसपास में, देयर लाइक ये मूवी कैसे नहीं चली, हम लाइक ये मूवी कभी नहीं चलनी चाहिए थी, दिस मूवी वुड हैव बीन crap no matter what, but like हाँ, टॉकिंग अबाउट गोलमाल 2 का जो क्लाइमैक्स है जिसमें वो सब लोग या चल के आ रहे हैं उधर वो पेड़ के या उधर जब भी टशक म्यूजिक बजता है एंड या देन क्लोज अप इज ऑन करीना कपूर, आई एम लाइक भाई जीत लिया तू या एकदम सही सही जीत लिया यहाँ पे। तो है एग्जैक्टली। मतलब those ही moments are ही like those moments are something I look forward to कि भाई ये तो चाहिए मेरे को।
सेम एग्जैक्टली मतलब ये रेफरेंसेस वाला जो होता है ही आई फाइंड देम वेरी क्रिएटिव और यूजुअली आई लुक फॉरवर्ड टू इट। गोलमाल 2 मैंने देखा, आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट। मुझे ये हाँ हाँ जोक पसंद आया था एंड ये एक ही जोक पसंद आया था। बाकी के जो हाँ जोक्स थे उसमें आई थिंक सो बहुत ही ज्यादा एक जोक उन्होंने रनिंग गैग बनाने का कोशिश किया है विच वाज शक 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 एंड द दैट इज क्रैप आई दैट इज डोंट नो। क्रैप बट ऑल्सो जब भी वो वो चार लोग जब भी होते हैं और उसमें जब हाँ भी वो आता है विजय शिरजी का कैरेक्टर आता है जब वो शर्ट हाँ उतारता है और वो या उसका उसका छाती में सांप होता है तभी हाँ लाइक श्रेयस चल पड़े उसको देख के बोलते हैं ना कि अबे तुम लोग इससे डर रहे हो क्या एंड देन अजय देवगन इज लाइक ये पिछले मूवी में नहीं था ना तू जा और फिर वो आता है उसको हल्के में लेता है और फिर उसको पीटता है एंड आई एम लाइक दिस इज व्हाट आई एम दिस इज व्हाट आई एम लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इवन वो एक जो उसका शर्मन का छोटा सा तस्वीर है साइड में और या श्रेयस को देख के बोल रहा है कि ये कौन था एंड देन इज लाइक अरे ये था एक पहले ये भी लक्ष्मण था लेकिन अभी वो सातवें आसमान पे बिकॉज या पीरियड किया था तो मतलब वो बहुत ऐसा पॉपुलैरिटी पे उसका चल रहा था लाइक रंग दे बसंती एंड थ्री इडियट्स हैपेंड बैक टू बैक एंड दिस या हैपेंड आफ्टर गोलमाल व्हिच इज व्हाई रिटर्न्स में वो था नहीं और गोलमाल 3 में उसको लिया नहीं बिकॉज ही आस्क्ड फॉर टू मच मनी सो सही है दिस इज अमेजिंग दिस इज लाइक डेडपूल लेवल राइटिंग बिफोर डेडपूल एवर हैपेंड लाइक जो या पूरा जो गैम्बिट का जो पूरा चल रहा था ना कि गैम्बिट वो मूवी में नहीं या है और इट जो है वो मे बी ही वाज बोर्न इन द वॉइड एंड आई एम लाइक ये सब जो चीजें थी ये हम लोग शर्मन जोशी के लिए कर रहे थे गोलमाल 2 में वो सातवें आसमान पे पहुंच गया बिकॉज अवेलेबल नहीं है वो ऑल दोस थिंग्स तो या या ये तो खतरनाक है। आई व्हाट मीन वाज आई एम श्योर इंटरनेट जो बाकी जो 50 जगह पे जो जब जब वो बोलता है कि जब जब अजय देवगन का रेफरेंस एज अजय देवगन आता है कि हाँ गोलमाल 1 में वो बोलता है कि बेटा तू समीर है ना और वो बोलता है अरे नहीं मैं अजय देवगन हूँ और फिर एक और में बोलता है ना वो पैंट पैंट नहीं शर्ट शर्ट नहीं अजय देवगन नहीं है सो दोज आर वेरी मेन स्ट्रीम जोक्स कि वो हो चुके लोगों को पता है वो बट these लिटिल थिंग्स जो मतलब ऐसे नगेट्स है ना कि these आर जोक्स व्हिच आर रिटन ओनली फॉर मी ऐसा मेरे को लगता है कि रोहित शेट्टी मेरे यस को पर्सनल जोक ऐसा डिलीवर किया कि भाई ये गाड़ी तेरे लिए बाकी लोग के लिए नहीं थैंक यू मिल गया रिसीव्ड एग्जैक्टली एग्जैक्टली नाउ अगेन ये जब तू व्हेन यू लुक फॉर दीज थिंग्स यू आर एंजॉयिंग मूवी मच मोर देन अगेन हाँ कि तो अगर तुम यही देखूंगा ना मैं तो मैं यही या एक्सपेक्ट करके आया तो हाँ यू आर एंजॉयिंग रोहित शेट्टी मूवीज टू द मैक्स। अब मेरे ख्याल से अब स्टोरी के मेन पॉइंट्स पे आते हैं अच्छा कि अच्छा टू टेल मी वन मोर थिंग इन द ट्रेलर टेल मी वन मोर थिंग जो एक जो वो सीक्वेंस है लाइक आई थिंक सूर्यवंशी के इंटरव्यूज के टाइम पे उसने बोला था कि अभी मैंने ना वेस्ट से उठाना बंद कर दिया है मतलब उसने बोला कि पहले मैं कुछ कुछ सीन्स ऐसे लेता था ऐसे मतलब उसने एज अ रेफरेंस बोला कुछ कुछ सीन्स मैंने ऐसे लिए थे बट अभी वो लोग जो है इंटरनेट पे ऐसे फ्रेम फ्रेम चिपका डालते हैं और बोलते हैं कि देखिए यहाँ से कॉपी किया तो अभी मैंने ना सब ऐसा स्टंट में ओरिजिनल करता है सो सूर्यवंशी हैड अ प्रिटी गुड जो बाइक चेस था वो काफी अच्छा था जहाँ पे लाइक कार्स वार्स फ्लिप हो रही है और वो बाइक उसमें से नेविगेट कर रहा है ऑफ कोर्स द हेलीकॉप्टर स्टंट इज अक्षय कुमार क्लासिक तो मतलब उसको या वो रेफर करना ही पड़ेगा उसका कुछ नहीं कर सकते बट इवन इन सिंगम अगेन जो एक जो स्टंट है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि वो डोनट मार रहे दे आर डूइंग अ डोनट विद अ कार एंड दीपिका ओके पादुकोण इज इन द बैक और वो गोली मार रही है टाइगर श्रॉफ एक खिड़की पे ये एक खिड़की हाँ पे और ऊपर से अक्षय कुमार जो है वो उसी डोनट के रेंज में अपना हेलीकॉप्टर से शूट कर रहा है या आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट have I not been या watching enough action movies or is it like a thing which is like built right from scratch कि मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है like I understand सिंघम का entry was from ब्रूस विलिस का मूवी जो था वो रेड उसमें वो कार का फ्लिप था जो उसने बोला भी है कि it was like kind of inspired from that but this particular thing जहाँ पे ये गाड़ी का डोनट हो रहा है और ऊपर से मतलब गाड़ी यहाँ से ऐसे स्किड मार रही है और ऊपर से हेलीकॉप्टर ऐसा ऑपोजिट साइड से अक्षय कुमार वहां से शूट कर रहा है that is something I've never seen in any of the action movies including those Michael Bay movies and stuff. So like ये क्या मतलब is he really trying to up the ante? How is it happening? क्या चल क्या रहा है? could be I wouldn't put it I mean it's not beyond his reach वो ओरिजिनल थिंकिंग कर सकता है उसका ट्रैकिंग बहुत सही है यार उसका ट्रैकिंग मतलब जो कैमरा ट्रैकिंग है ना मेरे को इतना सही लगा ना वो कि this could have been fucked up in like 100 different ways including like stunt sequence
एक्टर्स लोग फालतू लिए या जो भी कुछ है, बट द वे हाउ इट इज बीन शॉट, द वे हाउ द कैमरा इज ट्रैकिंग दैट एक्शन, द वे हाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब मुझे नहीं पता किसको शूट कर रहे हैं, जो कि जोक भी Yeah. चल रहा है कि तुम लोग सब लोग ही ऐसे गोली मार रहे हो तो मार किसको रहे हो, बट Hmm. आई सी समथिंग इन दैट जो कि मेरे को लग रहा है कि ये मैं बड़े स्क्रीन पे बहुत एंजॉय करने वाला है। इट्स लाइक It, दिस इज this is द interesting. this is the thing I'm in for. Like this is what I'm in for. I hadn't noticed that. What I had noticed was कि हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर से कार उड़ रहा है. Again, everybody is noticing that and everybody is That's making fun of that. But at the same uh, time मेरे को लग रहा है कि this is what Fast and Furious franchise does. अगर हाँ, uh, वो मैं लोग वो तो पैसा मैं कमा बोला रहे थे. दैट इज डिस्काउंटेड, वो तेरे को जो करना है कर, बट हम्म. लाइक लाइक मैं बोला ना सिंघम 1 में अगर वो एक बंदे को फेंक रहा है उसके ऊपर जंप मार के दूसरे बंदे को लेके जा रहा है, तो मैंने बोला खत्म बात। and and this is in middle of a very in the middle of a very greatly executed physical fight. If you look Yes. at it, वो लॉक करता है, उसका लॉक खोल रहा है, वो उसके बाइसेप्स पे फोकस है, और उसका अजय देवगन इज फुल्ली पंप्ड। एक तो मतलब Yeah. जो मैंने बोला ना रोहित शेट्टी का एक रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को Yes. ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा बॉडी चाहिए हीरो का जो शर्ट के अंदर या बनियान के अंदर जो है वो फिट लगना चाहिए, मतलब ऐसा Yes. पहलवान टाइप बॉडी चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं चाहिए कि शर्ट उतारेगा तब मालूम पड़ेगा कि अरे फिट बंदा है, वैसा नहीं चाहिए मेरे को। सो इवन इन दैट वो बनियान वनियान पहना हुआ है, और वो जब मसल्स फ्लेक्स कर रहा है अजय देवगन, उसको मतलब उसके सामने वाले को ब्रेक कर रहा है, हाँ. इट्स लाइक अ ग्रेट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ फिजिकल सीक्वेंस। और उसके बीच में वो मारियो का जंप आता है, टू डूम टू, Yeah. डिस्काउंटेड बस और कुछ। By the way, I just noticed ये सिंघम अगेन जो है इट्स अ फैमिली मूवी नॉट जस्ट फॉर ऑडियंस, इट इज फैमिली मूवी फॉर एक्टर्स ऑल्सो. इसमें जैकी श्रॉफ है, टाइगर श्रॉफ है, हाँ हाँ, और रणबीर दीपिका सिंह का और दीपिका पादुकोण है. और दीपिका एंड की, एग्जैक्टली यस 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 यस, रणवीर सिंह टेकिंग फैमिली मूवी टू अनदर लेवल. तो राइट वो भी राइट राइट है. राइट, could be. So हाँ. okay, what do you think about the story now? Let's come to the story. स्टोरी मुझे आई हैव कितना इससे ग्रास्प हुआ है, कितना इसमें से कितना ग्रास्प हुआ है कि कितने स्टोरी के पॉइंट्स ऐसे हैं जो लीक हो चुके हैं खाली ट्रेलर को देख के? मतलब मैं आई एम इन टू माइंड्स हियर. यहाँ हाँ पे हाँ, at some point I feel on one level I feel कि he has been overt in every sort of story beat कि मतलब वो सिर्फ ऐसे हिंट नहीं दे रहा है कि ये लक्ष्मण है, ये डायलॉग के साथ बता रहा है, विजुअल के साथ बता रहा है कि ये लक्ष्मण है बोल के टाइगर हाँ, सर श्रॉफ. पे टैटू रह गया था बस खाली के कहीं भूल नहीं जाओ तो। तो दैट इज वन पॉइंट. बट एट हाँ द सेम टाइम मुझे थोड़े से स्टोरी एलिमेंट्स जो रामायण में जिसका हाँ हाँ, एडेप्टेशन है और जो विजुअल्स है वो थोड़े मुझे ऐसे लग रहा है कि दे आर करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट स्टोरी पॉइंट्स. फॉर इंस्टेंस could be. he ad seems to suggest that Akshay Kumar is playing the role of Jatayu. एट द सेम टाइम जो मूवी में इसका एंट्रेंस दिखाया है वो एकदम बहुत आई मीन इट इज सजेस्टिव दैट ये क्लाइमैक्स में आ रहा है एज अ Right, right. ड्यूस एक्स माकिना कि मतलब कुछ होने वाला है, दे विल बी इन ट्रबल एंड ही विल बी वन ऑफ द गाइस हु सेव्स देम. राइट है, हाँ दिख रहा है। तो वो जटायु वाला पार्ट इट डजंट सीम्स टू करेस्पॉन्ड टू हिम. किसी एक यूट्यूबर ने बोला, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर दिस, द जटायु वाला पार्ट सीम्स टू करेस्पॉन्ड टू मोर टू दया, जब वो एक्चुअली करीना का किडनैप हो रहा है एंड ही इज प्रेजेंट एट द प्लेस. वो हाँ एक्चुअली एक गड्डी का विंग तोड़ता है, सो आई एम नॉट यस. श्योर हाउ दैट वर्क्स, बट हाँ ओके। तो आई थिंक एड इफ दे आर डूइंग इट डेलिबरेटली इट्स अ वेरी स्मार्ट मिसडिरेक्शन कि थोड़े पार्ट्स आर करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पीपल. टाइगर श्रॉफ का भी अपने को डायलॉग्स में बोलते हैं लक्ष्मण है, बट अपने को जो उसका विजुअल्स दिखा रहे हैं वो ही इज अक्रॉस अ बर्निंग प्लेस विच सीम्स टू करेस्पॉन्ड टू हनुमान. राइट है,
एंड उस अजीब सी बट चीज है। ओके, टू ऐड टू दैट अपन इसके बारे में जब ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तभी एक डिस्कशन किए थे हाँ व्हाट्सएप पे, कि मेरा ये मानना था कि द वे हाउ इट इज बीन डन, ये हाँ एनालॉजीज बहुत हद तक गलत बैठ रही है। आई टेल यू व्हाई। लाइक यस यस Ajay Devgn is a central character. It is the name of the movie is Singham, so of course he has to play Lord Ram, and यस because it's, Avni जो ये करीना कपूर है, she's his wife, so she has to play Sita Mata. Okay, I understand यस that. Apart from that, like let's say the biggest bond that Ajay Devgn has with anybody in this entire storyline throughout, जो उसका मतलब जो उससे यंग है, वो हाँ रणवीर सिंह है, बिकॉज वो मतलब पहले से that's the हाँ character which has been established right from early age, right? And यस he is one of those characters जो मतलब he kind of mends his ways, and he's the one who is very respective towards, he's like he has a lot of respect for Singham, right? तो I'm like ये आदमी लक्ष्मण क्यों नहीं है? That's my यस first एग्जैक्टली thing. कि why is he playing Hanuman? Why is he not playing Lakshman? At the same time, Akshay Kumar is somebody who is like Singham का contemporary. Let's say या I'm not sure who is elder या who is younger, वो मुझे नहीं पता. But he is a contemporary of Ajay Devgn. At the same time, he is the one who has to be. If you are adding he is the DX ex machina, and he's coming in a, वो आदमी लास्ट मिनट में ऐसा लास्ट मिनट सेव करने वाला आदमी है जो हाँ कि आएगा और उसकी हेल्प करेगा. Why is he not playing Lord Hanuman? Like why is he playing Jatayu? अगर किसी ऐसे आदमी को है जो ऐसा कोई पर्सन है जो हवा से उड़ के आने वाला है और वो ऐसा लास्ट मिनट में आके अगर राम की हेल्प करने वाला है, why is he not playing हनुमान? I still don't understand कि ये एनालॉजीज कैसे फिट नहीं हो रही है. टाइगर श्रॉफ एंड दीपिका पादुकोण केम लेटर, सो ऑफ कोर्स they can be playing some other characters. Tiger Shroff could be playing maybe a Bharat, like के किसी को तो चीजें भी हैंडल करनी पड़ेगी ना. या When is out playing his cop universe, somebody has to handle those things, right? कि भाई मेरे को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो लेट्स से कि जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है उसको मतलब he might be somebody who's like right up top, so somebody needs to handle that. So why is Tiger Shroff not playing that character who यस is like not important enough but important enough to be like okay start किया मैंने और ये पर्सन जो है वो वहां पे जरूरी आ रहा है. सो मेरे लिए वो ऐसा हो रहा है कि इट कुड हैव बीन अ बेटर एनालॉजी जस्ट बाय मे बी वन पास ऑफ स्क्रीन प्ले थ्रू इट, कि भाई तुम एक बार वापस से पास ले लो और चीजें ज्यादा बेटर हो जाएगी. यहाँ पे आई थिंक सो देयर इज अ वेरी हाँ गुड रीजन फॉर इट हाँ हाँ. वन अगर तुमको अक्षय कुमार को हनुमान रखना है तो देन हनुमान Hanuman's presence is throughout the story. And Akshay Kumar seems like a kind of guy वो एक साथ पांच छह फिल्में करता है तो he might not have been ready for that kind of commitment. तो उसको थोड़ा सा एक सीक्वेंस के लिए दूसरा दे आर रणवीर सिंह को क्यों रखा है हनुमान के लिए बिकॉज हनुमान ऑलरेडी मूवी इज फेयरली सीरियस आई बिलीव कि करीना कपूर गेट्स किडनैप एंड जो अजय देवगन का कैरेक्टर है ही विल बी सर्चिंग फॉर हर थ्रू आउट. तो अजय देवगन का जो कॉमेडी ट्रैक है दैट विल बी नलिफाइड क्योंकि यूजुअली जो भी सिंघम में कॉमेडी ट्रैक्स होते हैं अजय देवगन के दे आर विथ रोमांटिक इंटरेस्ट. राइट. तो सिंस करीना कपूर इज नॉट देयर ही विल बी मोर और लेस सीरियस इन द मूवी. तो कॉमेडी ट्रैक के लिए कोई लीड एक्टर चाहिए था जो कॉमेडी के चॉप्स आते हो. राइट है. हाँ अक्षय कुमार इज आउट ऑफ द पिक्चर. टाइगर श्रॉफ while he flies like Hanuman, let's not go there. Let's not go there. Comedy तो मतलब definitely नहीं. uh, Tiger Shroff uh, has Tiger Shroff has exactly two emotions. किसी ने डिसाइफर किया था कि एक yeah, उसका स्मग इमोशन है जो उसका स्टैंडर्ड yeah, इमोशन है, और दूसरा yeah, उसका अर्नेस्ट इमोशन है जहाँ पे वो ऐसा एकदम ही जैसे वो अपने मेंटर की तरफ देख रहा है, बिकॉज दैट्स समथिंग ही यूज्ड इन वॉर, ही यूज्ड इन uh, बागी, ही यूज्ड इन लाइक ऑल द अदर मूवीज. दीस आर द ओनली टू इमोशंस दैट ही इज गुड एट. रेस्ट एवरीथिंग इज क्रैप. या सो मतलब वो तो उससे तो कॉमेडी टाइमिंग की तो उम्मीद अपन वैसे भी नहीं कर सकते. बट या आई गेट दैट. बट नाउ आई एम नॉट रियली श्योर हाउ द मूवी प्लेज. लाइक हो सकता है कि मूवी प्लेज आउट इन अ वे दैट वेयर वो मतलब अपने को बोले कि तुम सब चूती हो, इसी वजह से हमने इसको इसके लिए रखा था. लाइक तुम लोग yes, ऐसा 5 मिनट का ट्रेलर देखे जज कर रहे हो गांडू लोग, ऐसा नहीं होता है. yeah, सो yeah.
it That's where definitely could be possible. that's where I'm thinking कि मतलब एड्स में सटल्टी का कुछ नहीं है रूल. हाँ Subtlety has been beaten over the head. But when I see the क्या बोलते हैं if this character corresponds to this situation or not, मुझे थोड़ा सा ऐसा मिसमैच लग रहा है. एंड आई थिंक वो डेलिब्रेट हो सकता है. इफ इट इज डेलिब्रेट, फुल पॉइंट्स टू रोहित शेट्टी कि वो एड्स में भी मिसलीड कर रहा है. तो could be. No, no. Okay. What about this? The whole connection to Ramayana, the like crux of it. What do you think about that? ये शुरुआत से ही बोलना चाहूंगा. Hmm. राम इज कंसिडर्ड मर्यादा पुरुषोत्तम राम. ही Hmm. इज बाय द बुक्स कैरेक्टर. Right. एंड सिंघम इज अ पर्सन जो पिछले 2 मूवीज में एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स कर चुका है. Okay, got it. तो And तो आई एम नॉट गोइंग फॉर complete faithfulness. uh, What you can expect from this movie is wherever you can go thoda sa jingoistic, those mhm, movements will be there. Uh, right. so uh, that is one part. Second part is Ramayana ka, I think so, choice makes some sort of logical sense. Mhm, क्योंकि इफ यू मतलब रोहित शेट्टी का खुद का ही बोलना है कि सिंघम जब शुरू हुई थी वो गांव में थी. सूर्यवंशी mhm, के आने 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 तक चॉपर्स वगैरह शुरू हो गए थे. तो right. अगर तुमको स्कोप बढ़ाना है, it is Mhm. very difficult to increase scope after that. After that, you have to go out for something epic. Something epic Which is okay, but why is that something epic being so blatantly like being like कि ऐसा फ्रेम बाय फ्रेम कंपैरिजन डाल के क्यों कर रहा है कि हाँ भाई ये रामायण ही है. लाइक अगर ये स्टोरी में रामायण नहीं होती और अगर हाँ 4 जगह डायलॉग डाल दिए होते कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, लाइक द गाय हु इज being played by Arjun Kapoor, and like yeah you I understand this irony कि Arjun Kapoor requires entire Bollywood to fight him, but ठीक है it's a Rohit Shetty movie, let's skip the logic. Let's not let's not go for और the dude, looks. wait, नहीं, यहाँ पे I have to put this thing. I अरे think हुआ है ये भी इंटरनेट Bollywood पे. is the हाँ क्या हुआ हाँ है? What's the joke? इंटरनेट पे पूरी पब्लिक इसी बात पे ये लेके चली है कि एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए मतलब अक्षय कुमार, अजय देवगन सबको आना पड़ रहा है. टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह एंड एवरीबॉडी. I'll be हाँ defending Arjun Kapoor here. ठीक है. हाँ हाँ ओके. Look, Arjun Kapoor is the most perfectly cast Ravan if there is ever one. And अगर तुमको जानना है क्यों, you just have to know his relationship with the family of Salman Khan. I saw that also. ये भी मैंने देखा हुआ था इंटरनेट पे. I'm like हाँ that is funny dude, that is absolutely funny. कि मतलब हाँ बीवी तो चुराई उसने, but let's okay हिंदू ही है, your दूसरा voice धर्म मानने को तैयार है. ठीक है. voice. Oh shit, यार क्या हाँ है? हाँ हाँ हाँ. And I also understand that कि मतलब his relationships with Salman Khan's family still could not destroy his career because he does not have a career, and he's still, but he's still considered important because he's Boni Kapoor का बच्चा. तो मतलब Salman Khan also can't Vivek Oberoi him. So Yeah. there are like he is in a position of power, but out of even like taking all that into consideration कि हाँ चलो ठीक है एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए 5 लोग लग रहे हैं. अर्जुन कपूर का नाम इसके अंदर डेंजर लंका है. ओके इट इज लाइक हो गया भाई, ये भी ऑब्वियस हो गया. तो अगर 4 जगह पे अगर तू डाल देता ना खाली ये मेंशन, तो मैं समझ जाता कि तू रामायण से इंस्पायर्ड है. मेरे को हर एक सीन में फ्लैशबैक्स और उसके साथ जो बैकग्राउंड्स है वो सब की जरूरत नहीं थी. बट ठीक है इफ इट इज व्हाट इट इज तो चलेगा. I mean, ये देख, तू जब ये बोल रहा है कि 4 जगह पे डालता, दैट इज सटल्टी. और मैं पहले ही बोल चुका हूँ रोहित शेट्टी केस में यू आर नॉट गोइंग फॉर सटल्टी. अगर इफ ही हैज टू मेक अ पॉइंट. हाँ सटल्टी नहीं बोल रहा हूँ. लाइक इवन लाइक आई यू नो व्हाट वन थिंग आई रियली लाइक इज
कि जो इसमें रामायण के सीन्स है ना वो बहुत ही गरीब एस्थेटिक्स में बनाए हुए हैं. इट्स नॉट Yeah. लाइक the way how it has been done in any of the बाहुबली काइंड ऑफ अ थिंग कि भाई इसको एकदम ही ग्रैंड बनाते हैं. और वो गरीब उसमें बनाने का भी जो है उसने अप टॉप रीजन दिया हुआ है कि इट स्टार्ट्स विद करीना कपूर बीइंग अ स्टेज मैनेजर और अ नरेटर फॉर अ प्ले. तो Yes. ऑल दो सीन्स आर टेकन फ्रॉम दैट प्ले. अभी प्ले का Yes. एक बजट लिमिटेड रहेगा विच इज वाई ऑल दो सीन्स जहाँ पे जब जब एक फ्लैशबैक होता है और जब जब वो लोग रामायण के एरा में जाते हैं they are not going to the Ramayana era, they're going to a certain section of a play. So maybe that Yes. play has a lot of puzzles that are being sorted. Could be, I don't know. शायद हो सकता है मैं उसके राइटर से ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ. बट दोज थिंग्स आर जैसे लोग इसको कंपेयर करें कह रहे हैं इसको आदि पुरुष जैसा बना है. नहीं भाई उससे बहुत ज्यादा अच्छा बना है. इट इज नॉट Yes. दैट. आदि पुरुष ने तो मतलब शायद रामायण को पढ़ा या देखा भी नहीं होगा. इट्स लाइक आदि पुरुष में मुझे एग्जैक्टली एक फ्रेम अच्छा लगा था उस मूवी का. एक फ्रेम, रेस्ट एवरीथिंग वाज क्रैप. आई थिंक आई टोल्ड यू दैट फ्रेम आल्सो राइट कि मतलब उसका एक वो फ्रेम था जहाँ पे दे हैव दिस शॉट ऑफ लाइक प्रभास एज लॉर्ड राम लाइंग ऑन अ फ्लोर एंड लाइक सीता माता इज नियर द फीट एंड लाइक वो जो भी फीट को कैरेस कर रही है एंड लक्ष्मण इज नियर द हेड. ही इज ट्राइंग टू लाइक cover his head with the shadow, Okay, with his shadow. which is Vishnu Wala reference. And this is how it's been shown, and this is only in the opening credits. Okay, this is how it's been shown, and above him is a cloud which is showing the Sheshnag and Lord Vishnu and Lakshmi Ma together. So जो वो parallels है वो भी एकदम ऐसा openly बताया है, and that's the only one frame in Adi Purush that I like, apart from all the Ajay Atul compositions, because मेरे को लगता है अजय अतुल compositions जब बना रहे थे तब उनको भी मूवी नहीं बनाई थी, वरना वो Yeah. उतने अच्छे कंपोजिशंस बनाते ही नहीं. द मूवी हैड गुड सॉन्ग्स. मूवी वाज एब्सोल्युटली क्रैप. उसके अलावा मुझे एक फ्रेम उस मूवी का अच्छा नहीं लगा. एवरीथिंग वुड हैव बीन रिमूव्ड. बट दिस इज स्टिल बेटर डिस्पाइट लाइक सच लो प्रोडक्शन वैल्यूज कि भाई ये लोग मटेरियल को थोड़ा तो सीरियसली ले रहे हैं. सो आई एम लाइक हाँ ठीक है चलेगा. इट वर्क्स. It's, एटलीस्ट इन द ट्रेलर इट वर्क्स. I mean, he is using it works और उसको बनाना है तो बनाना है यार अब. I was earlier making the argument कि it is going to be epic. It had to be epic. मतलब already ये टेररिज्म चॉपर्स वालों के साथ आ चुके हैं. इससे और कुछ epic है तो वो war होता है and a police officer being in a war feels like Singham 20. For now, huh? क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हैं डूड. धूम 3 के अंदर क्या बोलते हैं अमेरिकन पुलिस को हेल्प करने के लिए 2 मुंबई पुलिस के लोग जाते हैं. तो इफ दैट कैन हैपन. Okay, I stand corrected. रोहित शेट्टी ने अभी तक तो 100% दिमाग अपना यूज भी नहीं किया है. वो 100% दिमाग यूज करना है ना, तो मतलब यू हैव नो क्लू क्या होने वाला है. उस आदमी Around से मेरे को बहुत. सिंघम 20 में ये जो तू सोच रहा है वो नहीं होने वाला है. जो तू सोच रहा है वो शायद सिंघम 5 में हो जाए कि पुलिस ऑफिसर वॉर. could be. I stand corrected. Also, police officer going in a war is something that Baghi already did in Baghi 3. वो Oh, अकेला जाके सीरिया पूरी कंट्री को हरा के आता है. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट what you are thinking is not so far fetched in terms of movie logic. okay. Point. I stand corrected. वो तो फिर आई गेस उसको बस बनाना था रामायण और उसके हाँ. पास ये कैरेक्टर्स थे. could have been, मतलब हो सकता है कि कैसे उसको ये करे. तो मतलब है मतलब मुझे ना फ्रॉम अ रोहित शेट्टी फैन पर्सपेक्टिव मेरे को ये मूवी अच्छी लग रही है. Yeah. फ्रॉम अ मूवी पर्सपेक्टिव ठीक ही है, एंड फ्रॉम लाइक कंप्लीटली ऐसा एकदम ही ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से कि भाई मैंने कुछ नहीं देखा है लाइफ में और मेरे को मतलब बॉलीवुड में मैंने कुछ नहीं देखा और ये देखने से शुरू करूंगा. आई वुड रादर नॉट वॉच दिस. वही है. Oh, बट okay. लाइक आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट डे फर्स्ट शो. ये तो पक्का है. Okay. व्हाट Uh, अबाउट द कैमियोज? कैमियोज एक्सपेक्टेड है मतलब ये जो उन्होंने दिखा है वो एक्सपेक्टेड है. अनएक्सपेक्टेड कैमियोज वो तो आ रहे हैं, ठीक है, वो तो आ रहे हैं. व्हाट अबाउट द कैमियोज आर अबाउट टू कम, जो ऐसा न्यूज़ में स्पेकुलेशंस है कि अरे ये आने वाला है वो मैंने मैं एक कैमियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
And maybe I am not reading news enough. Mhm. Tell me if there is any speculation of Surya showing up. Yeah, there are enough speculations for that. There are enough There are, speculations. Yeah, yeah. yeah, there are. Then I'm hoping for that. क्योंकि it seems मतलब जब भी रोहित शेट्टी का मैं सिंघम देख रहा था, I noticed a pattern. हाँ, Um, हाँ, कि at some point there is a whole unity वाला एंगल कि right. सिंघम वन के एंडिंग में वो सारे पुलिस वालों को राइल अप करता है टू कम टुगेदर टू किल प्रकाश राज. बराबर. In the second Singham, which was very smartly placed as Mumbai police instead of Goa हाँ, police, uh, right. वहां पे भी वो he riles up all police walas to go in the Remove place that. of this. Now, Dajji का भी पूछा. now what I'm expecting is क्योंकि all सिंघम वन एंड टू उनका स्कोप सिर्फ एक सिटी तक ही था. Um, हम्म. सिंघम अगेन में द कैनवस इज इंटरनेशनल कि मतलब वो लंका में भी जा रहे हैं, वो चेन्नई में भी जा रहे हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग यूपी में भी कभी जाएंगे, और महाराष्ट्र से बाहर आदमी निकल ही रहा है. तो at some point, what Ajay Devgan is going to do is rally up all the police walas or equivalent of it, जहां पे हर स्टेट का रिप्रेजेंट टाइप ऑफ सीन आएगा. Could तो be. तो Fuck yes. Could work. तो एट सम पॉइंट सूर्या भी आएगा एज अ रिप्रेजेंट फॉर तमिलनाडु. Okay, that's how you can bring Chulbul Pandey and Surya in. कि हर एक या स्टेट का जो got it, got it, got it. I think maybe ऐसा मतलब maybe not as a like क्या बोलते हैं Hail Mary का. kind of a हाँ हाँ हाँ. ऐसा नहीं, but maybe अगर आता है and if that अजय देवगन का कार का flip का जो सीन है जो मूवी में बताया है, ट्रेलर हाँ में बताया है कि दीपिका पादुकोण is doing that वो flip. या If like something like that happens, but that happens in a mirror कि दो स्कॉर्पियो एक साथ ऐसे फ्लिप हो रही है और दो लोग निकल के आ रहे हैं, that हाँ. could be both the Singhams at the same time. Who knows? यस यस. कि कहीं ऐसा मोमेंट है जहाँ पे ऐसे दो स्कॉर्पियोज एक साथ हो रही है, doors open opposite में, and they like पूरा flip होके they like just the border जो पीछे का जो है जो डिकीज है that touching each other and ये लोग Yeah. ऐसा स्टेप लेके बाहर आ रहे हैं. I think maybe that's what I am looking at कि मिरर इमेज symmetrically सॉर्ट ऑफ. yeah symmetrically speaking that would be like oh ये रहा twice the fun. अब बोलो और क्या चाहिए. यस. सो ये दिस इज द. I told you about this thing a couple of years ago, right? कि basically जब Spider-Man No Way Home आई थी, तो सूर्यवंशी came 2 months before that, a month before that, कुछ ऐसे ही था. तो जो मेरे जो ऑफिस के बॉस थे वो देख के आए थे Spider-Man No Way Home. तो वो देख के आए और मेरे को बोले कि अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इन लोगों ने सूर्यवंशी देख के ही बनाया. तो मैं बोला क्यों लग रहा है आपको कि सूर्यवंशी देख के बना है. बोले वो सूर्यवंशी में तीनों पुलिस वाले एक साथ आते हैं ना, ऐसा सर्कल में खड़े होते हैं. तो मतलब स्पाइडरमैन में भी तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं. तो मैं बोला कि जो सर्कल में खड़े थे ना ये अवेंजर्स ने 2012 में किया हुआ था, और स्पाइडरमैन में जो ये जो हुआ है ना कि 3 स्पाइडरमैन आ रहे हैं, वो तीनों स्पाइडरमैन सेम कैरेक्टर है. यस दे आर ऑल द 3 कैरेक्टर्स कॉल्ड पीटर पार्कर फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सेस. ओके, यस. तो अगर सिंघम कभी ये करेगा ना तो उसके लिए उनको जो है सूर्या को, सुदीप को और अजय देवगन को एक साथ लाना पड़ेगा. ये तीनों का नाम तब जाके आप बोल सकते हो कि ये स्पाइडरमैन नो वे होम किया है इन लोगों ने. इट कैन नॉट बी बिफोर दैट. तो लाइक हाँ ये मतलब आई थिंक दैट मेरे शब्दों को अभी रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है. रोहित शेट्टी इज लाइक करते करते तेरे लिए ये भी करते. या प्रोबेबली. सो वो वही दिस इज लाइक फॉर मी. दिस इज फॉर लाइक अ. दिस इज लाइक अ ट्रीट फॉर मी डूड. जो चीजें मैं ऐसे सपने में सोचता हूँ ऐसा कुछ होना चाहिए, एंड रोहित शेट्टी इज लाइक अरे तेरे लिए तो बैठा है मैं, रुक जा बना के दे. वो आदमी मेरा सांता क्लॉस है. By the way, has Kitcha Sudeep been speculated to come in Singham again? Not yet. Nothing that I know Not of. yet. Oh, क्योंकि अगर वो आ गया फिर बाद में वो थियरी और भी चलेगी ना कि वो दबंग 3 में वो विलन था ब्रो, ऐसा कैसा. अरे आई डोंट तो अब तो नहीं हुआ है,
but that's one cameo, and चुलबुल पांडे इज वन कैमियो जिसके बारे में लाइक सबको पता है कि वो आने वाला है, Yeah. बिकॉज ऑफ टू News. रीजंस. एक तो लाइक लल्लन टॉप में लाइक सौरभ द्विवेदी ने जब भी पूछा था रोहित शेट्टी को कि क्या आपके यूनिवर्स में चुलबुल पांडे आ सकते हैं, तो ही टुक अ वेरी लॉन्ग पॉज Okay. टू बी लाइक मैं इसके बारे में क्या बोलूं, एंड देन ही गेव सम आंसर सेइंग कि हाँ कुछ भी हो सकता है. सो दैट आंसर वाज आल्सो वेरी वेग, पॉज वाज आल्सो वेरी लॉन्ग, तो पब्लिक को था कि Yeah. कुछ तो होगा. और Yeah. अभी जो मतलब न्यूज में जो स्पेकुलेशंस हुए हैं कि रोहित शेट्टी went to the set of Sikandar and then like he might be in the post credit scene, so maybe he has nothing to do with the movie, but he will be coming in the story just like Hrithik Roshan came in Tiger 3 कि पिक्चर Okay. खत्म हो गया उसके बाद का कोई सीन है. सो यू नो इट कुड हैपन. जैसे मतलब अजय देव उसका अक्षय कुमार केम इन सिम्बा, नोबडी एक्सपेक्टेड हिम, राइट? लाइक सबको वो था कि अरे सिंघम सिम्बा एक साथ आने वाले हैं, एंड इन दैट लास्ट 1 minute the whole Yeah. surprise package was like, and for like again an Akshay Kumar fan, that surprise package was like अरे रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार एक साथ काम कर रहे हैं भाई, ये तो मतलब the action director, the action star, they're coming together, bro. This is like some next level shit going on. Yeah. Oh, that cameo. वो तो Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. Vicky Kaushal. Yeah, that's one rumor that is being coming around कि Vicky Kaushal might join the cop universe. So again, I don't know what is that. It might be some new offering. I'm not sure. Just a minute. It might be some new offering. I'm not sure. But Vicky Kaushal coming into a Rohit Shetty universe is going to be again awesome because Vicky Kaushal stunt director का बेटा है दोस्त. Yes, yes. तो मतलब हाँ, वो हाँ. आदमी, और वो आदमी ने अपने पूरे करियर में अभी तक कोई ऐसा एक्शन मूवी नहीं किया जहाँ पे वो फुल मासी रोल में आया है. He has Yes. done a significant amount of action in Uri and other stuff, but like a massy Vicky Kaushal is something we have never seen. So Yes. if that happens, बहुत potential है जो वहाँ पे explore हो सकता है. I don't know whether it will happen or not. और also like जैसे अभी जब से स्त्री 2 में अक्षय कुमार का कैमियो हुआ है तब से तो लाइक पब्लिक मतलब चुतिया ही गई है. पब्लिक इज लाइक अरे ये मूवी में इसका कैमियो है क्या, वो मूवी में उसका कैमियो है क्या. लेकिन कैमियो ऐसा नहीं होता है, पैसा लगता है, एक्टर वेला नहीं बैठा है. You know, तेरे को क्या लग रहा है सड़क से उठ के स्टार बनेगा, वैसा नहीं है ना अभी. इट्स नॉट. पैसा लगता है, बट अगेन द थिंग इज पैसा हमेशा नहीं लगता है. स्त्री का इट सीम्स लाइक ही हैड अ प्रॉपर ही माइट हैव सम हुक इनटू द स्त्री 3, जो मुझे लग रहा है. The hook was that Amar Kaushik, the director of Stree 2, is producing the movie with Akshay Kumar, which is called Sky Force, जो कि आने वाली है. Okay. So there is a connection like that. Okay, I'm not saying कि फ्री में लोग नहीं करते होंगे, करते भी होंगे. स्त्री 3 में अक्षय कुमार आने वाला है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन कुछ भी ऐसा नहीं है. It could be that you can use that character. It could also be कि he may not use that character. जैसे अपने को भी पता है ना कि जैसे अभी सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो अक्षय कुमार इज द थैनोस ऑफ द स्त्री यूनिवर्स. भाई थैनोस को थैनोस बनने में 8 साल लगे थे. थैनोस वाज रिवील्ड इन 2012, 6 साल व्हाटएवर 2012 में रिवील हुआ. और उसकी जो मूवी थी, सोलो मूवी थी, वो 2018 में आई जहाँ पे लाइक दे वर लाइक ओके दिस इज अ स्ट्रॉन्ग विलन फॉर ऑल द अवेंजर्स. तो इट्स नॉट लाइक वैसा रीलीन होगा. एंड ऑल्सो दे आर स्टार्स डूड. लाइक यू कांट एक्सपेक्ट सलमान खान कमिंग इन रोहित शेट्टी मूवी ओनली फॉर अ चीप कैमियो. इट माइट बी कि या तो कुछ आगे प्रॉमिस है तो बात अलग है, अदरवाइज व्हाई वुड ही वेस्ट हिज टाइम, और व्हाई वुड ही वांट टू इवन लूज दैट कैरेक्टर इन सच अ वे. वो भी तो है ना. लाइक वन ऑफ माय फेवरेट कैमियो मोमेंट्स जो कि ऐसे लगता है कि जिसका बैक स्टोरी सुन के ज्यादा वो ऐसे लगता है कि भाई ये भी एक जमाने में बॉलीवुड हुआ करता था. ओके, सो अंदाज अपना अपना में, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो दिस, अंदाज अपना अपना में देयर इज अ डायलॉग बिटवीन आमिर खान एंड जूही चावला जहाँ पे आमिर खान बोलता है कि सनी के साथ तो बहुत सारी मूवीज कर रहे हो, एंड जूही इज लाइक लोगों को हमारी पेयरिंग पसंद है. ओके, कट टू द नेक्स्ट सीन जहाँ पे गोविंदा है और जूही चावला है और आमिर खान है. So Govinda was never supposed to be in that scene. That scene was supposed to be for Sunny Deol only, because Raj Santosh ने Sunny Deol के साथ बहुत सारा काम किया हुआ है. तो Sunny Deol was the guy जो आमिर खान को बोलता है कि अरे हीरो जैसा लगता है and all that. But because of some problems, Sunny Deol was not available on the set.
वो आ नहीं पाया, सम इशू व्हाटएवर हैपेंड, वो आ नहीं पाया, तो राज संतोषी सिंपली क्रॉस्ड हिज सेट, सामने वाले सेट में गया जहाँ पे गोविंदा था, और गोविंदा को बोला कि एक सीन करेगा क्या, और गोविंदा आके वो सीन करके चला गया. This does not happen now because of managers, PRs and 100 different things that are coming in between. तो अब Yes. वो जमाने अभी गए जब भी ऐसा होता था कि कोई क्रॉस करके सीन करके चला जाता था. This is never going to happen, at least in today's time, in today's Bollywood at least. Yeah, या agreed. तो रिलेशनशिप्स वो लेवल पे होना चाहिए कि जोया अख्तर के लेवल पे रिलेशनशिप्स है कि तुमने पूरे बॉलीवुड को कैमियो करवा दिया, या Yeah, फराह खान के लेवल पे हो गए कि तुमने पूरे बॉलीवुड को बोल दिया और सब लोग आ गए. yeah. That does not happen on like उस फ्रीक्वेंसी पे वो चीजें अभी होती हुई नहीं दिखती है. तो Also, Farah I Khan plus Shah Rukh Khan. हाँ, of course, Farah Khan plus Shah Rukh Khan, but still like that level of understanding may not be, that level of access may not be with everybody, you know, सबके साथ वो नहीं होगा. तो वैसा है ना, Yes. तो है. हाँ. By the way, What Vicky, about this other one? हाँ, I'm thinking Vicky Kaushal को लाने में again, he might be part of represent or some massive cameo streak में उसका भी एक हो, but हाँ, हाँ. अगर उसको दिखाने रहे हैं and if it is hinting at some future movie, ये I think so it is going to be done with Tiger Shroff, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को लेके आ रहे हैं, दे आर पूरा का पूरा नया कैरेक्टर एस्टेब्लिश कर रहे हैं. They got Deepika Padukone before that. Deepika Padukone का सोलो मूवी, इनफैक्ट ये भी है इन टॉक्स है कि दीपिका पादुकोण का सोलो मूवी आने वाला है. तो मतलब आई उनके पास ऑलरेडी सोलो मूवीज एस्टेब्लिश करने को दो पड़े हुए हैं. विकी कौशल आता है तो अच्छी बात है, बट डजंट मेक सेंस टू मी कि इन दोनों का बट इन दोनों के एडिशन में ये भी ट्रैक हो, क्योंकि ऑलरेडी हाँ, ओवरक्राउडेड है मूवी. बट अभी वो भी हो रहा है ना, इनका टेस्टिंग भी तो हो रहा है ना उनका. लाइक दीपिका पादुकोण का मूवी वाज, दे वर सपोज टू मेक अ फीमेल कॉप मूवी या आफ्टर सिंघम अगेन हैपेंस, बट अभी ट्रेलर में दीपिका पादुकोण के जो एक्टिंग है उस पे लोग बहुत ज्यादा क्रिटिक कर रहे हैं कि अरे चेन्नई एक्सप्रेस वाला ही एक्सेंट है, शी इज लुकिंग सो लाइक डल एंड ऑल दैट क्रैप इज हैपनिंग. सो इट माइट बी दैट हर मूवी गेट्स पुश्ड, हु नोज, किसको पता है कि आगे क्या होने वाला है. यार that doesn't make sense to me. मतलब even accent is not as strong as Chennai Express. No, it's not. And Like I said, वो तो छोड़ दे. Like public ने so in Vikram Vedha, Hrithik Roshan is playing a dark skinned character, and he's yes, playing a dark skinned character in Super 30. Super Okay? 30. और दोनों में उनका जो एक्सेंट है वो नॉर्दर्न एक्सेंट है. लाइक एक में उसका बहुत हैवी बिहारी एक्सेंट है, एक में Yeah. उसका नॉर्दर्न एक्सेंट. उसके बाद लोग सुपर 30 जब देखे थे, उसके बाद जब इसका विक्रम वेदा का ट्रेलर आया, पीपल आर लाइक अरे उसी का एक्टिंग चेप दिया. मतलब उसी का एक्टिंग चेप दिया मतलब वो क्या प्लास्टिक सर्जरी कराएगा क्या हर बार मूवी के बाद? ही विल बी लुकिंग लाइक दैट बिकॉज ही डज लुक लाइक दैट. यू कांट रियली Yes. हेल्प विद इट. सेम वाज फॉर पीके एंड लाल सिंह चड्ढा, कि लाल सिंह चड्ढा के लोग बोले थे कि थोड़ा बहुत पीके से एक्टिंग उठा लिया आमिर खान ने, और फिर थोड़ा बहुत धूम 3 से उठा लिया. एंड हम लाइक उठा लिया क्या होता है? वो आदमी जो है उसने ही वो एक्टिंग किया है, उसी का Yeah. चेहरा है. अगर वो अपनी आंखें बड़ी करता है, अगर वो थोड़ा वियर्डो टाइप वो अगर दिखता है वैसा, अगर वो आदमी अगर लाइक इन दिस इज ट्राइंग टू बी ऑटिस्टिक, बट वो जो टॉपिक थंडर का जो रूल है ना कि नेवर गो फुल रिटार्ड, ही इज Yeah. गोइंग टुवर्ड्स दैट. सो यार पॉलिटिकल करेक्टनेस तो मतलब खत्म ही हो गई. बट या इज लाइक आमिर खान ने खुद एक रिया चक्रवर्ती के इसमें पॉडकास्ट में बोला था कि आई डिड प्ले इट अ नॉच हायर देन व्हाट आई शुड हैव बीन. सो मतलब ही वेंट फुल रिटार्ड. तो Yeah, yeah. बेसिकली वो उसको जो है, तो मैं बोला हाँ मतलब देयर मे बी फ्लॉज, बट ऐसा थोड़ी होता है कि यार ये तूने वहां से एक्टिंग चेप दी है या वहां से एक्टिंग कर दी है, ऐसा थोड़ी होता है. यार इट्स द सेम गाय प्लेइंग द सेम कैरेक्टर विद दैट सेम फेस. देयर इज ओनली सो मच ही कैन डू. Yeah, yeah, and I still मतलब see थोड़ा सा merit in that argument. Not Cheta completely, but he he has been playing some person on some kind of spectrum in two movies at least.
राइट है हाँ. एंड इसमें लाल सिंह चड्ढा में एक मैनरिज्म ही अलग है, दैट इज जब वो बात करता है तब वो हैवी बीच, पंजाबी एक्सेंट. नहीं हैवी पंजाबी एक्सेंट है, बट ही हैज अ वोकल टिक आल्सो, कि वो जब बात ओके. करता है तो लेट अस से आई एम टॉकिंग टू यू प्रवीण, प्रवीण, ही एड दिस एट द एंड ऑफ इट, एंड उसके अलावा देयर इज नथिंग डिफरेंशिएटिंग। अगर उस वही कैरेक्टर पीके में होगा इट वुड सीम एट होम, वही क्या अलग मैनरिज्म्स अलग हो सकते हैं। But then this looks like because Amir Khan or Hrithik Roshan are experimenting, that's why they are being lashed out at. या या Because Shah Rukh Khan is doing the same shit for 20 years. Akshay Kumar has been doing the same shit in the same year in 4 different movies. So या वेट मतलब वेट 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 वेट, नॉट अ शाहरुख खान फैन बट I'd like to defend him at this moment. uh, okay, I exclude Chak De India, I exclude Swades. But I if you mean, talk about fan is different, हाँ, Zero is हाँ, different, or okay, Raees is quite different. Uh, okay, same shade for 20 years in a movie that was successful. okay. Let's put it now. Okay, Okay, okay. like Delivery मैं was same as Chennai Express. मतलब उसका कैरेक्टर में मुझे वैसा उतना बड़ा कोई डिफरेंस लगता नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. अगेन आई एम नॉट अ शाहरुख खान फैन. लाइक आई एम अ शाहरुख खान फैन इन टर्म्स ऑफ वाचिंग हिज इंटरव्यूज. मूवीज मुझे कंप्लीटली स्किप कर सकता हूँ मैं. सो इज लाइक दैट. या मतलब सलमान खान इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर इन लाइक अ बॉडीगार्ड और लाइक What? बॉडी. हाँ, He is na matlab. And yes, yes. surprisingly like Shahrukh Khan was like post 2010ish. Hmm. Shahrukh Khan was trying to suck up and be the next Rajnikant. कि मतलब Okay. एक मूवी में रजनीकांत का कैमियो करा लिया, एक Hmm. मूवी में रजनीकांत को गाना डेडिकेट कर दिया, you know Yes. that lungi dance and all that, which is I don't know how is that a dedication to a South Indian guy, but like to simply stereotypes पे गाना लिखा है उसका. But then somehow Salman Khan comes close to that just by doing those same kind of like illogical action movies. And Yes. Salman Khan is like, bro Yes. मैं यही करके वो फैन फॉलोइंग बना लेगा जो मतलब तू बनाने की कोशिश कर रहा है. I have the perfect movie for that, you know. I have the perfect movie for that. Singham is re-releasing again. Yes. Yeah, and that's where I get to watch this entire thing. It's like I don't know. I'm a fan of the first movie, so I'll possibly watch it again. I'll probably be watching Surya's movie for some reason, क्योंकि अभी वो एक ही बचा हुआ है, बाकी सब, हाँ, कौन सी मूवी? कौन सी मूवी? सूर्या की सिंघम. अच्छा हाँ वो वाली. ओके ओके हाँ ऑफ कोर्स. हाँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ भूल भुलैया का ट्रेलर. सो यू हैव नॉट लाइक रियली यू नो. सो जिस दिन सिंघम का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसी दिन भूल भुलैया का ट्रेलर रिलीज होने वाला था. Okay. Yes, And then they said that because of some technical glitch, the trailer is being postponed by a day or something. understandably. सिंघम का ट्रेलर ड्रॉप होता है एंड द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म इज कि तुम लोग ने शॉर्ट फिल्म का को अपलोड किया इसके ऊपर. 5 Yes. मिनट का ट्रेलर नहीं होता है. हाँ. एंड द सेकंड ट्रेलर दैट कम्स आउट इज भूल भुलैया का ट्रेलर व्हिच इज अगेन अ लॉन्ग एज ट्रेलर. 4 मिनट का अप्रोक्सीमेट ट्रेलर है. बट द गुड पार्ट इज कि इट इज शॉर्टर देन सिंघम. सो यू थिंक दैट वाज डेलिबरेट कि भाई तेरे पास अभी 24 घंटे हैं, इस ट्रेलर को काट और छोटा कर इसको. इज इट दैट और इज इट अपोजिट वे कि शायद उन्होंने 2 मिनट का ट्रेलर बनाया रहेगा और फिर बोला रहेगा नहीं नहीं 2 मिनट के सीन्स और डाल इसके अंदर, बिकॉज हम लोग को भी बड़ा ट्रेलर चाहिए लेकिन इतना बड़ा भी चाहिए कि सिंघम वाला सारा क्रिटिसिज्म हमको मिले. तो दे लाइक 1 मिनट कम करेंगे, वील मेक इट 4 मिनट्स एंड विल पुट इट आउट. I ये कुछ भी हो सकता है यार. I mean, I doubt they were going for 5 minute trailer. और हाँ हाँ यार कोई भी नॉट 5 एग्जैक्टली. मतलब भूल भुलैया के उसमें टेक्स्ट बहुत सारा है. ठीक है, बहुत सारा टेक्स्ट है जो बीच बीच में आ रहा है, जो मतलब मुझे पता है कि ये प्लेस होल्डर्स है, ये खाली इसके लिए है कि भाई ट्रेलर का लेंथ बढ़ सके. आई डोंट नो हाउ दैट इज, बट आई एम लाइक 4 मिनट का ट्रेलर सीरियसली फॉर अ थ्रीक्वल व्हिच इज लाइक जस्ट अ हॉरर कॉमेडी. व्हाई डू यू अबे रिक्वायर नहीं दिस? यार, जरूरत नहीं है यार, 4 मिनट्स की तो जरूरत नहीं है. Did Bhool Bhulaiya 3 have a teaser? या इट हैड अ टीजर. बहुत छोटा तो टीजर था बट हाँ.
यार ट्रेलर में तुमको ये सब बताने की जरूरत नहीं, बस है माधुरी बता दो एंड ओके, माधुरी है बताना है उनको, विद्या बालन है बताना है, कार्तिक आर्यन है बताना है उनको, एंड और क्या बचा है बताने के लिए? नहीं नहीं, उसके ट्रेलर में कॉमेडी के एलिमेंट्स काफी अच्छे थे। लाइक एक जोक मेरे को बहुत फनी लगा था, जो कि नेटफ्लिक्स वाला जोक था। बाकी मतलब स्टिल फॉर अ मासी ऑडियंस द कॉमेडी एलिमेंट्स वर लाइक ओके। जो उसमें एक जो लाइक कुणाल कामरा वो जोक बहुत बार ट्विटर पे कर चुका है, बट आई थिंक मूवी में उस जोक का डेब्यू है, जहाँ पे वो बोलता है कि राजकुमार, वो राजकुमार का पी भी नहीं है ये, तो बोलता है पी तो आता नहीं राजकुमार में, तो बोलता है पाखंडी में तो आता है। सो दैट इज अ जोक विच कुणाल कामरा इज बीन लाइक, उसने करना बंद कर दिया अभी ट्विटर पे, जहाँ पे वो कुछ ऐसे रैंडम सा ऐसा लेगा कि द आर इन सम द एक्स इन निर्मला सीतारमन स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, ऐसा कुछ। द ई इन निर्मला सीतारमन स्टैंड्स फॉर एम्पैथी, ऐसे मतलब वो डालता है कि जस्ट I दैट। get it. The alphabet या is not in there and that stands for some quality that person does not have. हाँ हाँ, तो मतलब वो यहाँ पे दैट दैट जोक वाज देयर, तो हम लाइक हाँ ठीक है, मतलब इट्स नॉट दैट बिग, इट्स नॉट दैट बिग अ डील। उसके अलावा नेटफ्लिक्स वाला जोक मेरे को बहुत फनी लगा था, कि वो उसको टकराता है एक फोर्स फील्ड से और डुडुम करके आवाज आती है, एंड देन संजय मिश्रा इज लाइक नेटफ्लिक्स, दैट इज फाइन। वो अच्छा जोक है, वो अच्छा जोक है। मजनू भाई का पेंटिंग इज एब्सोल्युटली फोर्स्ड, इट इज एब्सोल्युटली क्रिंज, कि भाई तेरे को इसकी जरूरत नहीं थी, तो आई डोंट नो व्हाई इज दैट इन द मूवी, बट ठीक है, डाल दिया तो डाल दिया। मतलब वो भी मुझे, वहां पे भी ना मुझे सटल्टी बहुत अच्छी लगती है इस मामले में, कि लाइक यू नो हाउ इन सो आवारा पागल दीवाना में अजय अक्षय कुमार प्लेज अ गैंगस्टर, राइट? Yeah. गैंगस्टर नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, ही इज अ माफिया गाय, ही इज अ डॉन, गुरु गुलाब खत्री, राइट? Mm. और गुरु गुलाब खत्री जो है, उसके जो मतलब ऐसे जो पोजेज होते टीवी पे, जब भी वो बताते हैं ना कि ये आदमी वहाँ का बहुत बड़ा डॉन है, ही इज ऑलवेज वेयरिंग अ लेदर जैकेट एंड ही Yeah. हैज अ नाइफ इन हिज हैंड, जो उसका Yeah. बोलता पोपट, जो उसका Yes. नाइफ है, दैट्स ऑलवेज हिज हैंड, ओके। आवारा पागल दीवाना में दैट दोस फोटोज आर लाइक, जब आफ्ताब परेश रावल को बोलता है कि ये वहाँ का बहुत बड़ा डॉन है, कट टू दीवाने हुए पागल, जहाँ पे सुनील शेट्टी अक्षय कुमार के बारे में एक फेक न्यूज फैलाना चाहता है, इसको रिमी सेन को, वो नहीं क्या, वो हमेशा क्रचिस पे आता है और फिर उसको कुछ ना कुछ बोलता है कि Yeah. आफ्ताब के बारे में पहले कि वो ड्रग्स वग्स करता है, और फिर अक्षय कुमार के बारे में बोलता है कि वो मर्डरर है। तो जब वो उसको न्यूज़पेपर देता है ना कि वो मर्डरर है, उसके अंदर गुरु गुलाब खत्री का फोटो है। That little attention to detail, because it is being produced by Nadyadwala only, not Yeah. the not Sajid Nadyadwala, the other Mm. Nadyadwala. Mm. ओके, कट टू वेलकम, जहाँ पे वेलकम में मलिका शेरावत की एंट्री होती है, वो पूरा घूंघट घूंघट ओढ़ के, और फिर बाद में वो बोलती है ना कि ये सब अगर नहीं हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी, तो जेब से नाइफ निकालती है और वो बोलता पोपट होता है। तो मैं बोला कि क्या डिटेल है भाई, क्या Holy shit, डिटेल है, I had not known about this until now. मैं अभी देखूंगा ये सब. क्या डिटेल है वो। मैं भाई उस स्टेटमेंट को देख के मैं कायल है उसका, कि भाई ये जो है ना, मतलब दिस इज पीक मेटा मोमेंट, ये चाहिए मेरे को मूवीज में, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। ये जोक सिर्फ तू ही एंजॉय कर रहा था. नहीं नहीं, ये मतलब आई एम श्योर वेलकम वाला जो पार्ट था कि वेलकम में उसका नाइफ है, ये तो मतलब फिर भी पब्लिक है, बट जो 3 अलग अलग जगह पे वो सेम चीज का रेफरेंस है ना, हाँ. दैट इज लाइक आई डोंट नो, मतलब वो बहुत ऐसा पेक्यूलर डिटेल्स, जिसको पता है उसको वैसा, आई डोंट नो कैसा हाँ. वो नाइफ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैंने वेलकम जब भी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है ना, मैंने सीडी वीडी पे देखी थी, पता नहीं उस टाइम में, बट व्हेन आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वो नाइफ मेरे को ऐसा था कि अबे गुरु गुलाब खत्री का नाइफ है ये मालूम है, बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है अपने आप में, तो इसका हाँ. तो वो था, वो मतलब कि इफ यू नोटिस इट यू विल गेट इट, अदरवाइज यू वोंट। बट यहाँ पे मजनू भाई का पेंटिंग तो ऐसा एकदम ही फोर्स्ड है कि भाई ये याद है तुम लोग को, ये याद है, ये मीम था, ये इसके लोग दिस इज द वन ट्राइंग टू बी। हाँ. So, also about भूल भुलैया 3, what do you think about the like I don't know story, तो मतलब क्या ही उम्मीद करूं मैं, भूल भुलैया तो मतलब मुझे 2 से ही उम्मीद खत्म हो गई थी, बिकॉज लाइक सबका जो प्रॉब्लम है वही मेरा भी प्रॉब्लम है, कि फर्स्ट वाज अ साइकोलॉजिकल हॉरर, Yeah. कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिट इन अ प्लेस, और फिर मालूम पड़ता है कि इसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ओके। Yeah. इसके अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, जो कि उस पर्टिकुलर
भूत की है जिसकी कहानी इसने सुनी हुई है. Yeah. सेकंड में तबू इज बॉट इन एंड दे प्रूव कि समहाउ महल में एक्चुअली में एक भूत है. सो पहला तो मतलब मेरा वहीं से वो उम्मीद उठ गया कि भाई तू हॉरर बना रहा है तो हॉरर क्यों बना रहा है उसको. व्हाई दिस फ्रेंचाइज इज बीइंग टेकन इनटू दैट. जहाँ पे जो जो इसका रूहान का जो कैरेक्टर है रूह बाबा, इवन ही इज समबडी हु इज प्रेइंग ऑन द पीपल हु आर लाइक सुपरस्टिशियस कंपेयर टू आदित्य श्रीवास्तव जो कि इसको बहुत ही एक बोलते ना एक अपनी भूत बाधा की प्रॉब्लम को बहुत ही साइंटिफिकली हैंडल कर रहा है. सो ये तो एक प्रॉब्लम हो गई. एंड द क्लाइमैक्स ऑफ दैट मूवी इज टेकन फ्रॉम अलोन, जो कि पता है कि वो दो बहन होती है, एक मर गई उसकी जगह दूसरी ने ले ली. Yeah. Have you not? I have not seen Bhul Bhulaiya 2. Okay, so मुझे I don't think it matters anymore. But yeah, the climax was entirely copied from Alone, जो कि बिपाशा बासु की मूवी थी, which was copied from a movie which was a Thai movie or I don't know an Indonesian movie, one of that. So yeah, so उसमें मतलब वो लोग ये होते हैं conjoined twins होते हैं. So बिपाशा बासु वाली मूवी मैंने देखी थी, तो इसीलिए क्लाइमैक्स में जब वो फ्लिप हुआ ना, मैं बोला अबे यार, तो वहीं पे दिमाग खराब हो गया कि तुम ऐसी मूवी को क्यों उठा रहे हो जो अभी अभी बन के फ्लॉप हुई है. तो दैट वाज वन. बट या, in 3 they bought back Vidya Balan. Somehow Manjulika is back. Somehow Manjulika is a ghost. And I'm really not sure where is this going now. they say I don't know, man. It feels like cash Like grab. It has been cash grab for a is long time. it is a cash grab. But now my problem is that when they bought Vidya Balan back, is it still about split personality or is it about like मैं इसमें साइंस लेके चलूं, या मैं इसमें जो 2 वाला पार्ट है जहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि नहीं सब भाड़ में गया, इट इज कम्प्लीटली skip all that and simply forget about all that psychology lessons that you have taken in the first movie. We are going absolutely in the occult way. So where is it going with that? आ, ये मतलब चीजें समझ नहीं आ बिना देखे मैं बोल सकता हूँ कि इतना मत सोच. वो खुद नहीं सोच हाँ, रहे. They are going to have some scenes that refer to earlier movies. उसके बाद में बीच में कोई सीन होगा कोई हॉरर मूवी से कॉपी होगा and that will be हाँ that. वो पक्का है, वो पक्का है. सो देर इज लाइक हार्डली कुछ फ्रेम्स है जहाँ पे बताया है कि विद्या बालन एंड माधुरी दीक्षित आर डूइंग अ डांस ऑफ, Yeah, which is going to be आमी जे तोमार once again. yeah, And from what I know, मतलब जितना मेरे को पता है शायद श्रेया घोषाल is singing that song again. yeah. So वहां पे देवदास के जोक्स होंगे. फिर it will be, I mean, two heroines doing a dance off. That is Devdas ka domain. I don't think देवदास के jokes होंगे because like I'm not sure how that goes, but I mean that looks like a very like वो ऐसा लग रहा है कि वो सीन also like director ने रिवील किया कि वो सीन exactly इंटरवल के बाद आ रहा है. So I've been watching अनीस बाज़मी के इंटरव्यू, so he's like ये जो सीन है वो exactly इंटरवल के बाद आ रहा है. So I hope कि तुम लोग इंटरवल में समोसा लेने के लिए बिजी नहीं हो जाओ because तुम लोग एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सीन मिस करने वाले हो. अच्छा, तो okay. Oh wait, then we'll continue ये वाला discussion when I'm up to date on भूल भुलैया. मैंने भूल भुलैया भी barely देखी क्योंकि मुझे मैंने दैट्स ओके, बट यहाँ तो कंटिन्यूटी बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही ना. उन्होंने फर्स्ट में जो किया है सेकंड को पूरा फ्लिप कर दिया और या थर्ड को वापस से पूरा फ्लिप कर दिया, तो वो तो मैटर नहीं करता. अच्छा, व्हाट अबाउट कैमियोज ओवर हियर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कैमियोज हियर? आई जेन्युइनली डोंट नो. मुझे माधुरी दीक्षित का ही पता है और विद्या बालन दो और दो लोग का उम्मीद है कि दे आर सेइंग कि कियारा एडवानी का कैमियो होगा. एंड माय क्वेश्चन इज क्यों होगा ऐसा, मतलब व्हाट इज शी कंट्रीब्यूटिंग इन द मूवी, or like what did she contribute in the second movie? I'm not sure. वॉशिंग टू. She was into, she was the love interest in two. ओके. And मेरे को मतलब जितना 3 देख के मेरे को लग रहा है आई एम लाइक वो क्लासिक, अगर उसका अगर उन लोगों ने फ्लिप किया तो वो ये होगा कि तृप्ति दिमरी विल बी द घोस्ट. दैट वुड बी द क्लासिक फ्लिप, कि अपने को शक जा रहा है कि ये दो में से एक घोस्ट है जबकि तीसरी बंदी जो है वो भूत निकल सकती है. बट या, सेकंड कैमियो, द मोर इम्पोर्टेंट वन, Aditya Srivastava is coming back. They are bringing Akshay Kumar's character in Bhul Bhulaiya 3 as a cameo. What say? Would be
बट अगर वो होता तो आई एम थिंकिंग कि इधर है तो लास्ट सीन में होगा कुछ, या फिर if वो होता तो वो दे वुड बी कमर मतलब मोनेटाइजिंग द शिट आउट ऑफ इट, ये भी है वो भी है, देखो दो दो तीन तीन है व्हाट नॉट। तो They could have been monetizing the shit out of this, but maybe they are keeping that under wraps. अभी पहली बात तो वही है कि अक्षय कुमार इज एन एक्सपेंसिव कैमियो टू डू, बिकॉज वो आदमी ही एक्सपेंसिव है, पहली बात तो वो। बट इवन अदरवाइज व्हाट आई थिंक ऑफ इट इज कि अक्षय कुमार ने ऑलरेडी अभी स्त्री में कैमियो किया हुआ है, तो मे बी सारे स्पेकुलेशन इसी बात पे है कि अक्षय कुमार स्त्री में कैमियो किया है, तो अक्षय कुमार भूल भुलैया में कैमियो क्यों नहीं करेगा? एंड द ऑब्वियस आंसर इज नहीं करेगा, क्योंकि उसके पैसे लगते हैं, महंगा है वो। तो ऑल दैट थिंग इज ऑल्सो into the consideration, right? बाय द वे, कि अगर वो करता है प्रोड्यूसर्स ऑफ भूल भुलैया 3, सॉरी एक मिनट, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ भूल भुलैया 3? टी सीरीज, टी सीरीज। ओके फाइन फाइन। आई नो दिस बिकॉज इंटरनेट पे वो बहुत वो था कि भूल भुलैया 3 ने सिंघम 3 का ट्रेलर जो है उसके व्यू के रिकॉर्ड्स का ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा क्रॉस किया है। एंड आई एम लाइक टी सीरीज इज द बिगेस्ट यूट्यूब सब्सक्राइबर बेस चैनल, ऑफ हाँ, यूट्यूब। या तो वो नंबर कब से मैटर करने लग गया, मतलब ठीक है। नॉट जस्ट अ बायस टुवर्ड्स रोहित शेट्टी, बट ऑल्सो लाइक हाँ, टी सीरीज पे कोई भी ट्रेलर जो है, स्पेशली अगर कोई एंटीसिपेटेड ट्रेलर है, उसका वो नंबर क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट हैज द बिगेस्ट लाइक सब्सक्राइबर बेस। लाइक कुछ साल पहले प्यूडीफाई और उसका झगड़ा मतलब वो उसका वो चल रहा आई था डोंट नो, टी ना। सीरीज और प्यूडीफाई का चल रहा था, वो पता है। तो व्हेन भूषण कुमार केम आउट एंड ही सेड कि इंडियंस लोग से दरख्वास्त किया था कि प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि एक इंडियन चैनल आगे जाए, और फिर लोगों ने उसको गाली दिया था कि मतलब ये भाई कॉर्पोरेट चैनल है, इसका इंडिया से क्या मतलब है? व्हाट्स इंडिया व्हाट टू डू विद दिस? तो वो नहीं सब नहीं, था। एंड अगेन PewDiePie इज वन गाय, टी सीरीज इज अ एंटायर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो मतलब एक इंसान को मतलब पीछे करने पे तुला था, तो था वो। इट्स, आई मीन, दैट्स अ पैंडोरास बॉक्स I'd rather not get into, क्योंकि हाँ, हमने से वो तो obviously but also सिंघम अगेन के कैमियोज में यू थिंक दैट एनीबॉडी, लेट्स लाइक बी क्रिएटिव, कोई और है? लाइक लोग बोले थे चंद्रमुखी चौटाला आने वाली है इसके अंदर फ्रॉम चंद्रमुखी, एफआईआर। नहीं नहीं, शी इज नॉट, which I think might happen. शी इज नॉट IPF, कमिंग, शी इज नॉट कमिंग। IPF. ट्विटर पे Hmm. किसी ने कमेंट किया था कि मैम आर यू कमिंग, तो उसने रिप्लाई किया था कि नो स्पेस फॉर द ओरिजिनल्स। तो मतलब काफी स्टैट्स पर आई थिंक वो बॉलीवुड में उसका कुछ ये रहता है। आईपीएफ के काफी कैमियोस का आई थिंक सो स्कोप तो बनता है। अगेन, इट्स फॉर दैट वन रिप्रेजेंट वाला सीन, कि मतलब जहाँ पे हर जगह का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद लाइक द ओनली फैक्ट कि वो पुलिस वालों का ही सीरीज है, उसके अलावा उसका कोई इससे टाई अप नहीं है। हाँ, नहीं है, बट लाइक अगर वो लोग मेन कैरेक्टर्स में से अगर श्वेता तिवारी अगर यहाँ पे है, या निकेतन धीर अगर वहां पे है, जो एक प्रॉब्लम जो मैंने बताया था कि उसमें विवेक ओबेरॉय की वाइफ है, वो यहाँ पे पुलिस कंट्रोल रूम है। या At the same time, he was a terrorist in the previous movie, and he is one of the police over there. या तो बट ये तो obvious। but we have tackled that kind of inconsistency with journalist Singham 2 और Singham 3 में जो issues हाँ, है। नहीं नहीं, वो राइट है, बट मेरे को लगा वो तो बहुत ही ऑब्वियस हो जाएगा अनलेस लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा मेक्स अ कैमियो। Yeah, द ओनली जस्टिफाइड थिंग इज सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी मेकिंग अ कैमियो इन दिस। दैट्स yes, द ओनली जस्टिफाइड थिंग। अगर उन्होंने कैमियो बनाया तो यार रिप्रेजेंट हमने देखा हुआ है उसको, yeah. कुड बी, उसके तो अलावा तो कुछ नहीं है। तो यही बट since this is like owned by Geo Studios, which was Reliance Entertainment before, and Reliance Entertainment made Commando, the Vidyut Jamwal movie. I know, I Am know, I I going? know. Am I going too far fetched with that? Because if that happens, fuck, I'm like, ये तो मतलब crazy ही हो जाएगा कि मतलब वो मुझे पता है कि विपुल शाह was the director for that. No, he was the producer for that. So it is like a little like पता नहीं rights के issues का क्या होगा. But if like Karanveer Dogra makes a cameo in a Singham movie, because they already have NSG commandos in that, right? If Yeah. that makes a cameo,
that's the shit that I'm really interested in watching. के तुम्हारा Tiger Shroff और विद्युत जामाल जो है, they are facing off bunch of people just to show who is better. Unlikely but बहुत अच्छा speculation. And that Unlikely might, pardon? अनलाइकली तो सब कुछ ही अनलाइकली है भाई, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि I know. लेट्स गो वाइल्ड. Damn. यार एक बहुत गंदा ख्याल आ रहा है रैंडमली. हाँ प्लीज गंदे ख्याल के लिए बनाया है पॉडकास्ट. गंदा ख्याल इसका टाइटल रख सकते हैं अपन. Not related to Rohit. I mean, very distantly related to Rohit Shetty. जैसे रोहित शेट्टी हर किसी को पुलिस बना रहा है, राइट? यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप, यू आर अ कॉप. संजय लीला सबको रंडी बना रहा है यार. Fuck. Yeah, that's interesting, dude. That's a cinematic universe I'm absolutely not interested in. मैंने हीरा मंडी का एक टीजर भी नहीं देखा है. मैंने खाली उसके रील्स देखे थे जहाँ पे जो उसका क्या नाम है, आदिति राव हैदरी, राइट? Yes. She is just walking away from the camera और पीछे जो उसका म्यूजिक बज रहा है. That's the only thing I've seen. बाकी like फरदीन खान, अध्ययन सुमन, शेखर सुमन, all the other a number of people, Richa Chadda, Manisha Koirala, absolutely no clue in watching, absolutely no interest in watching that. मैंने बोला वो तो मैं skip ही कर रहा है, Netflix का subscription इसके लिए नहीं लिया मैंने, because I am simply not interested in that. Like गंगूबाई काठियावाड़ी मैंने देखा था, I found it okay, I found it good. जो कि अपन उस पर भी बात किए थे कि अजय देवगन is like playing multiple important underworld dons from the 70s. Yes. यहाँ पे वो आदमी एक बार करीम लाला बन चुका है in this गंगूबाई काठियावाड़ी, वो हाजी मस्तान बन चुका है in Once Upon a Time in Mumbai, Yes. और वो कप्तान में दाऊद बन चुका है. Yes. So like the only guy he is like he's left to play is that South Indian dude from Once Upon a Time in Mumbai who was also a very important character, and I forget the name. Vardarajan Budaliyar. Vardarajan, yeah, that guy. So that's the guy. I don't know Ajay Devgan वो role कभी play करता है, but yes, that's something which is. But हाँ, Sanjay Leela Bhansali का Randy Cinematic Universe is something. It is something which is like हाँ, like क्या होगा इसका? Could be. Not related. But you know what? Talking about the Commando, talking about Commando. Let's come back to this. Yes. अक्षय कुमार, हाँ, because वहाँ अभी जाने के लिए कुछ बचा नहीं है. अक्षय कुमार being like a part of so many cinematic universes, like Yes. abhi already he's a part of the Cop universe as Suryavanshi, right? He's a part of Stree universe as the descendant of Sarkata. He was a part of the Neeraj Pandey universe, if at all that would have happened, as Ajay Rajput. Yeah. Then he's also a part of the Houseful franchisee, because Houseful 5 में वो लोग Houseful 1, 2, 3 और 4 के सारे लोग को एक साथ लेके आ रहे हैं. Oh my. That's the thing they're going. That's the thing they're going for. So I'm really interested in two characters. कि Commando was produced by Reliance Pictures, and it was made by, like, the other producer was Vipul Shah. Okay. At the same time, Vipul Shah and Reliance Pictures made another movie called Holiday. Yes. जिसके अंदर विराट, right, Captain Virat and ये Karanveer Dogra. I really think instead of this crap that we got, Bade Miyan Chote Miyan, we should have gotten a movie with Captain Virat and this guy, Captain Virat and Commando Karanveer Dogra. That could have been much better. That could have been much better than whatever shit was made by this. Like पृथ्वीराज was like कि मतलब मुझे ये मूवी में मैं क्या कर रहा हूँ exactly. एक जगह like एक टाइम पे मेरी गोट्स लाइफ रिलीज हुई है जहाँ पे मतलब मुझे लोग ऐसे अपलॉड कर रहे हैं कि क्या मूवी बनाया है, और दूसरी तरफ मैं बड़े मियां छोटे मियां में काम कर रहा हूँ जहाँ पे लाइक लोग बोल रहे हैं कि भाई ये मूवी तो स्किप क्यों नहीं कर सकता था, लाइक व्हाई इज इट. इसमें टाइटल भी जस्टिफाई नहीं हुआ है. इसमें कुछ नहीं. It is the only funny part of that movie is that one small section
जहाँ पे सतीश कौशिक इज टॉकिंग टू अमिताभ बच्चन एंड गोविंदा, जब भी टीवी पे वो मूवी लगी हुई है जहाँ पे वो लोग अटैक करने जाते हैं. द ओनली फनी पार्ट इज अ फनी पार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल मूवी. अदरवाइज द टाइटल इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्रैप कि भाई एक मूवी लगी थी टीवी पे, उसको लेके हम लोग मिशन का नाम ले रहे हैं. तो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट like happening. But this was something which I would have really expected. अगर वो लोग बोलते ना कि oh by the way we are bringing another cinematic universe, we got like army cinematic universe where we got this one guy from the commando universe and one guy from the Indian army whatever. Yeah, What's the name? बेबी अरे क्या नाम है? हॉलीवुड DIA. बेबी. नहीं DIA, Defense Intelligence Agency. He's from that, right? या Virat Bakshi is a special agent inside an army. यस यस. So yeah, so that's that character and Commando's character. That would have been a great movie. अगर वो लोग लेके आते ना उस मूवी को, I think अगर उसका मतलब एक ढंग का स्क्रीन प्ले होता, मे बी मुरुगन उसको बोलते कि भाई तू ही लिख इसको, something, do something with that. That would have been a great movie, dude. इट वुड फिर हैव उसमें बीन. तुम लोग फिर उसमें तुम लोग भरो ना, आर्मी में और लोग को भरो ना, कि तुम उसमें लेके आओ एयरफोर्स को, उसमें तुम लेके आओ जो भी नेवी है या अलग अलग जो बाकी पैरामिलिट्री कमांडोज है, एंड मेक अ फकिंग यूनिवर्स आउट ऑफ दैट. बट कुड हैव बीन अ थिंग. Could have been. लेकिन अक्षय, That's like लेकिन दैट्स नॉट अ लॉस फॉर अक्षय कुमार. वो अकेला ऐसा इंसान है जिसके 2-3 फ्रेंचाइजी बंद हो गए एंड ही इज स्टिल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फ्रेंचाइज. हाँ बंद हो गए, मतलब इट्स मोर लाइक के जब उसको निकाला भी था, लाइक फॉर एग्जांपल वेलकम टू में ही इज नॉट इन द वेलकम टू, या and they bought everybody in Welcome to apart from Akshay Kumar. Okay, and that movie kind of tanked only. या. And now Welcome to the Jungle, they bought everybody except for Uday and Majnu. So where is this going? They bought Paresh Rawal, but Paresh Rawal is not playing Gunguru. I think that's where it is going. So then my question is, where is it that why is it called Welcome and where is it going? But क्या ठीक है, लॉजिक तो हटा दे उसका साइड में, but this is something which I'm really interested in कि क्या कर रहे हैं उसके साथ. नो आइडिया ड्यूड. इट डिमांड्स अ डिफरेंट पॉडकास्ट इन इटसेल्फ. हर सिंगम में एक पैटर्न है कि इस सिंस वो थोड़ा सा रीजनल को पैंडर करता है, तो हर सिंगम मूवी में और मेरे ख्याल से सिम्बा में भी देयर इज अ रैंडम मराठी पंच लाइन. ठीक है, आता माझी सटकली, आली रे आली, तेरी बारी आ रही, वगैरह वगैरह. दैट इज देयर. Suryavanshi does not have that. हाँ. Suryavanshi does not have that. Suryavanshi has a very peculiar problem of forgetting names, and Yes. that joke never lands. That the funniest joke that happens in that is जब वो इसको सिम्बा को बोलता है कि ये बाजीराव, और वो बोलता है अरे मैं भाले रहा हूँ. तो वो जो एक जो उसका सीक्वेंस है ना, जहाँ हाँ पे उसको confuse करता है कि तू भी तो बाजीराव है. हाँ. पहले उसको बोलता है बाजीराव, हम्म. तो बोलता है अरे वो बाजीराव है, मैं बाजीराव हूँ. तो बोलता है अरे तू भी तो बाजीराव है. तो अरे मैं भाले रहा हूँ. बिकॉज द नेम्स आर सो सिमिलर. आई एम लाइक हाँ ये फनी है. एंड द बाजीराव मस्तानी का जो अनदर लेयर इफ एट ऑल दैट थॉट Oh yeah, yeah. कि वो रणवीर को बाजीराव बुला रहा है और वो बोलता है मैं भाले रहा हूँ, वो बाजीराव है. तो अगेन आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इंटेंडेड, बट There is आई a विल connection. टेक इट एज Yeah. आई विल टेक इट Yeah. एज अ विन. तो वो है. So that's the only time that joke lands. Otherwise, अक्षय कुमार का जो जोक है कि he always forgets the name, वो हर बार वो जोक जो है मेरे को ऐसा लगता है कि वापस फ्लाई दिया. So I'm like बस. So yeah. तो जितने बार मैं वो नाम भूलने वाला गैग देखता हूँ ना, आई जेन्युइनली अप्रिशिएट परेश रावल इन आवारा पागल दीवाना. Dude, that's like वो जीनियस आदमी है वो तो एकदम ही अलग लेवल पे है. इनफैक्ट नहीं, अक्षय कुमार ने ना इस मूवी के अंदर भी ना, यू नो दैट वन गाय जो सिम्बा के अंदर ऑटो ड्राइवर होता है, और सूर्यवंशी में वो बंदा जो रहता है उसको पता रहता है कि वो 600 किलो RDX जो है वो जगह वो पॉइंट आउट करता है. तो उसमें उसको याद करना होता है कि निकेतन धीर का कैरेक्टर दिखता कैसा है. तो वो नाम भूल जाता है, और वो फिर अक्षय कुमार के सामने आके बोलता है कि अरे ये भी कोई बीमारी है क्या साहब, ऐसा नाम वाम भूल जाता है, ये कैसा बीमारी है, आदमी कितना मुश्किल से जीता है पता है क्या. लोग ऐसा आके मेरे को उसके गले में ऐसा वो गमछा रहता है,
तो ऐसा होता है, बच्चे लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, मालूम है क्या? लोग मेरे को फिर उसको बोलता अक्षय कुमार को कि आप तो ऐसे इतने बड़े साहब है ना साहब, तो आप तो ऐसे दिन के 50-100 नाम याद रखते रहोगे। मेरे को तो बच्चे लोग आके चिढ़ाते हैं कि लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता, क्या बताएगा इसको मैं? तो इवन दैट वर्क्स, इवन दैट वर्क्स। जो जो बंदा सेक्रेट गेम्स में छोटा बदरिया बना हुआ है, इवन दैट वर्क्स, बट अक्षय कुमार से वो जोक पता नहीं किस तरह से लैंड ही नहीं होता है। सो मैं बोला भाई ये तो अलग लेवल पे फक अप चल रहे हैं। So you are going to watch Singham again in Uh, theaters. yeah, dude, I'm going to watch Singham again, and then I'm going to watch Singham again because मेरे डैड को सिंघम बहुत पसंद है. My dad is a kind of a guy who is a sucker for those 70s का action movies. So उनको अगर मैं सिंघम दिखाने लेके गया ना, he is going to be going like crazy कि भाई ये क्या चल रहा है. मतलब उनको मैं एयरलिफ्ट दिखाने लेके गया था अक्षय कुमार की, बिकॉज मेरे को लगा कि उनको मैंने राउडी राठौर दिखाई थी और वो टाइप के मूवीज बताई थी, तो उनको अक्षय कुमार पसंद होगा. एयरलिफ्ट दिखाने लेके गया, वो पके हैं बुरी तरह से. वो बोलते हैं कि क्या चल रहा है. मैं बोला अरे वो आदमी 1,70,000 हिंदुस्तानियों को वहां से कुवैत से ईरान से जहां से भी लेके आया, यहाँ पे बचा के लेके आया. तो बोलता है न्यूज़पेपर दिखा देता ना मेरे को, ये पूरी पिक्चर क्या दिखाने की जरूरत थी. एक फाइट सीक्वेंस नहीं, एक कॉमेडी नहीं, क्या चल रहा है ये यहाँ पे. तो लाइक ही इज अ मासी मासी गाय, उनको एकदम ऐसा मास सिनेमा पसंद है. तो सिंघम अगेन उनके लिए डेफिनेटली है. ही इज गोइंग टू बी लाइक ही इज द ऑडियंस फॉर दिस काइंड ऑफ अ मूवी. दबंग, सिंघम, बॉडीगार्ड, रेडी, ये सब सलमान खान की मूवीज मैंने उनको दिखाई है. एंड ही इज लाइक कि भाई ये बहुत मस्त ऐसा लगता है मेरे को देखने में. बाकी उनको ये सोशल कॉज वाला अक्षय कुमार उनको पसंद ही नहीं है. और मेरे को भी नहीं पसंद है ऑनेस्टली. मतलब ठीक है तो मतलब कर रहे हैं, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट योर सोशल कॉजेज, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दैट. भाई तू कॉमेडी और एक्शन में अच्छा है तो वो करना. आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू. मैं सिंघम अगेन देखूंगा, शायद अकेले ही देखूंगा. या आई एम नॉट फ्रेंड्स विद एनीवन. मैं अकेले ही देखेगा पहले. मैं बोलो ना, मैं हर मूवी अकेले जाता है, सो आई वॉच इट अकेले. फिर मैं ऐसा कुछ पैटर्न लगाएगा कि मैं अपने भाई के साथ जा रहा है, फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है, फिर मैं अपनी बहन के साथ जा रहा है. सो आई वॉच इट मल्टीपल टाइम्स. वो पक्का है. Chalo. All right. That's where we end the podcast. It has been fun discussing with Praveen. We'll get back to you with another movie.